Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to talk about unit number 5, which is facilities for importers and exporters, right? We have already covered the four units of module A. I hope you already gone through these particular one. So today we will talk about the facilities for exporters and importers, right? Again, very important unit. Even in if you see the examination of June July 24, so there was number of question based on this particular unit, especially that area of IEC और their related guidelines and all, right? क्या होता है आपका एक्सपोर्टर्स के लिए क्या फैसिलिटीज है, इंपोर्टर्स के लिए क्या है, वो सारी चीजें जिनको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. And this session will go around 1 hour, okay? And we will discuss each and every subtopic of your module A unit 5. Okay, so let's have a quick look about the course content, then we will cover these particular one by one. So the first one is basic objectives and introduction, which is all about the exports. Export regulation is again very important part, right? So then we have exchange and trade control guidelines for exporters, facilities for exporters, export finance, gold card scheme, very important one. Okay. Export data processing and monitoring system, which was introduced by RBI in 2014. Okay, so basically authorized dealers, they have to update in this particular one. Factoring and forfeiting, very important subtopic. Exchange and trade control for importers, import finance, import data processing and manage monitoring system, trade credit, and we have a supplier credit and buyer's credit, right? So these are the subtopic which are part of your unit 5. Chalo. So let's start the discussion with the import export. Okay, so now, like, if you talk about country like India, which is one of the most emerging country in the world, so nowadays we have like not even for only India, it is for every country. Like, we do have our dependency on imports and exports, especially after this new economic reforms 1991-92, right? Like nowadays बहुत सारे organizations हैं, those who deal with export and import activities. In every country or economy, they have a significant role of exports and imports in their economy like China, which is totally depend on their export. ठीक है, सो इंडिया का भी आपका काफी बड़ा अगर हम ग्लोबल ट्रेड के अंदर देखते हैं, सो इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सो मेनी एक्टिविटीज जहां पे हम लोग आपका मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हैं. ठीक है, so export which generally help you to make your balance of payment in surplus numbers, and कहीं ना कहीं आपका जो गवर्नमेंट के या फिर आरबीआई के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, सो वी कैन फैसिलिटेट आर एक्सपोर्टर्स सो दे कैन गेट बेटर रेवेन्यूज फॉर देयर एक्सपोर्ट एज वेल, राइट? अब यहाँ पे दो कंट्रीज का बेसिकली इंटरेक्शन आपका हो रहा है. इन एवरी कंट्री दे हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट फिनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बैंक आपका कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स के लिए, जिससे वो नए नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सकें. ठीक है, तो उन सबसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं और आपका जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें जिनको हम लोग यहाँ पे समझने वाले. सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सपोर्ट कंट्रोल. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलेशंस, so we have around four ministries which are generally involved in this particular one, right? So but अगर हम लोग institutions wise जाते हैं, so these two institutions which are very important one, right? First one is RBI, the Reserve Bank of India, which generally handle a documentation part and payment and settlement. And another one is DGFT, who generally draft the EXIM policy. ठीक है, so Directorate General of Foreign Trade, which generally comes under Ministry of Commerce and Industry. जो आपका हमारी जो EXIM policy है, import export policy है, which is generally designed and drafted by DGFT itself. ठीक है, so in India, export trade is regulated by DGFT, which function under the Ministry of Commerce and Trade Industries of Government of India. RBI, with generally policies and procedures granted under the FEMA regulation that are governed by the RBI. Similarly, import trade also. So for import also, we have DGFT. Import guidelines are generally drafted by DGFT, and documentation and payment and settlement is taken care by the RBI itself. Okay?
Apart from this, we have FEMA Act, Foreign Exchange Management Act, and so many other things also. So Reserve Bank of India, with power delegated under FEMA Act 1999, regulate exchange control and receipt and payments of foreign exchanges, part through various guidelines, FEMA amendments, while the Office of DGFT regulate the trade control through the EXIM policy and periodic announcement with a view to expand or control the international business of the country itself. Okay? Apart from these domestic institutions, we have an international organization also who generally take care about the पेमेंट गाइडलाइंस इन अदर्स, दैट इज नोन एज आईसीसी. ये हमने लास्ट उसमें आपका पढ़ा भी था लेटर ऑफ क्रेडिट में, वो यूसीपी 600 जो आपका रिलीज किए गए थे किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा. एंड एलसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स है, खासकर जब भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वहां पे. ठीक है. सो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड transactions across the globe facilitate guidelines guide the parties to trade through their documents like UCP 600. Apart from that, uniform rule for collection URC 522, and we have uniform rule for demand guarantee which is URDZ 758, and apart from this we have other rules and regulation of ICC also. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है, इसके बारे में भी हमने आपका थोड़ा बहुत बात किया है पहले कि जो आपके फॉरेक्स डीलर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, या ऑथराइज डीलर्स दे बिकम मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी आपका एक रोल आता है. ठीक है. So, Foreign Exchange Dealers Association of India, a self-regulatory organization established in 1958 with approval from RBI. So, objective is to promote growth of India's external sector and contribute to the development of forex market in India. ठीक है. तो ये कुछ entities आपका जो major involvement देखने के लिए मिलेगा. Now, if we talk about specifically with regard to export and import, so we have this particular chart which will guide you. ठीक है. तो जहां पे हमारे पास कौन कौन से एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो सब आपको मिलेंगे. ठीक है. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे पहले, ठीक है, जिसमें आरबीआई विच रेगुलेट रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सो अंडर विच वी हैव ऑथराइज डीलर्स बैंक. ठीक है. सो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. देन वी जैसे कैटेगरी 1 में क्या था आपके ऑल कमर्शियल बैंक. ठीक है. कैटेगरी 2 आपका अपग्रेडेड एफएफएमसीज, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स एंड RRBs or some cooperative banks. Category 3, which include DFIs, which is domestic financial institution like Exim, SIDBI and all, right? Ministry of Commerce and Industry, जिसके नीचे आपका DGFT, Directorate General of Foreign Trade, and आपका SEPC, Software Technology Park of India. DGFT which take care about goods and SEPC which generally take care about the services. Ministry of Electronic and IT which generally take care about the software export. So here we have STPI which is Service Export Software Technology Park of India, STPI, and SEPC is Service Export Promotion Council. ठीक है. So these are the abbreviations also, so you can go through these particular one. ठीक है. तो ये आपके मेजर इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट आपका टुवर्ड दी बेसिकली वी कैन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और आपका फॉरेन ट्रेड. ठीक है. सो एक्सचेंज ट्रेड एंड कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर्स. सो सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्टर्स को पढ़ेंगे एज पर योर कोर्स करिकुलम. ठीक है. देन वी विल गो थ्रू द इंपोर्टर्स. ठीक है. तो अब अगर आपने एक्सपोर्टर को समझ लिया तो इंपोर्टर्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा. आसान क्यों हो जाएगा? जैसे एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट विच इज नोन एज IEC. ठीक है. इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कोड आपका जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. तो अगर आप इंडिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, so first you have to opt one registration number that is known as IEC number. ठीक है. that is importer exporter code. Authorized dealers जितने भी transactions आपके होंगे उन सबको अकाउंट करेंगे बेस्ड ऑन योर IEC नंबर. ठीक है. तो जैसे आपका इंडिविजुअल के केस में पैन नंबर पे होता है, यहाँ पे दैट कोड जो सारी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करता है जिसके थ्रू RBI, दैट इज कॉल्ड IEC, एंड दिस नंबर इज जनरली जनरेटेड थ्रू DGFT. ठीक है. सो एवरी पर्सन, फर्म, कंपनी engaged in export import trade has to apply and obtain an importer exporter code number
from DZFT. Please do remember this. कौन ये issue करता है, ठीक है? This is a registration number of the firm, company or international trade, and the exporter importer has invariably a code, this code number in all declaration form and etc. ठीक है? जब भी आपकी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, एडीएफ आपका एक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म के नाम से जानते हैं, तो जब भी आप ऑथराइज्ड डीलर्स को अप्रोच करोगे फॉर द रेमिटेंसेस, सो दे विल आस्क यू फॉर दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है? सो जहां पे जैसे आपका अगला, जैसे हमारे पास एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म ही है, ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है? तो जैसे कोई भी एक्सपोर्ट आपका यहाँ से इंडिया से कोई एक्सपोर्टर करेगा, सो दे हैव टू फिल अ फॉर्म, दैट फॉर्म इज नोन एज एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है? तो जिसमें जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ठीक है, सो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, जहाँ पे पर्पज कोड यू कैन सी, इसमें कहीं पे तो मेंशन होगा, ठीक है? सो जैसे आपका फॉर्म नंबर and exporter name and address, consignee name and address, name of Indian bank and authorized dealers code, ठीक है? Then we have authorized dealers code, RBI approval number, ठीक है? So इसके अलावा authorized dealers address, आपका mode of रियलाइजेशन, ठीक है, एलसी है या अदर्स डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है? पोर्ट फॉर लोडिंग और सोर्सेज पोर्ट, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे एरियाज आपका जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? सो देर आर सम कोड, आई गेस आई एम जस्ट मिसिंग दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है? कहीं पे तो आपका मेंशन होता है दैट पर्पज कोड एंड अदर्स, ठीक है? आई कोड जैसे यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक है, दैट इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ठीक है? सो दैट इज जनरली दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है? तो ये आपका, और इवन द डिटेल आपका, सो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे हमने, अगर आप लोगों ने एलसी वाला, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स देखा होगा, सो दैट इज, ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे भी हमें देखने के लिए मिल रहे थे, ठीक है? सो आपका एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, so section 7 subsection 1 subsection 3 of FEMA Act, all export of goods from India, whether in physical form or any other form, required to declared in the prescribed form to the effect that full value export will be realized within the prescribed period and in the prescribed manners, ठीक है? तो इस तरीके से ये फॉर्म आपका जो एक्सपोर्टर्स को फिल करना होता है बिफोर दी, whenever they approach for any kind of exports from India, ठीक है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास क्या है, आपका सॉफ्टेक्स है, ठीक है? ये ध्यान रखें आपका, ठीक है? सो फॉर एक्सेप्ट अदर देन सॉफ्टवेयर, it is made by EDF form, ठीक है? And Softex is generally for softwares, ठीक है? Export of software in non-physical form, so they are generally exported through Softex आपका, ठीक है? तो ये दो डॉक्यूमेंट्स जो कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स को रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है? So with the introduction of electronic data interchange system at certain custom offices where shipping bill are processed electronically, the GR form has since been replaced by the declaration form, EDF, electronic declaration form, ठीक है? तो पहले जैसे आपका आज की डेट में मोस्ट ऑफ जितने भी जो कस्टम ऑफिसेज हैं या जो बड़े बड़े और पोर्ट हैं, वहां पे जो चीजें आपकी होती हैं वो ऑनलाइन तरीके से आपका चीजें चलती हैं, तो आप जीआर फॉर्म ना होके हम लोग क्या फिल करते हैं, आपका एडीआर, ठीक है? सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो ईडीएफ सॉफ्टेक्स हैं, ये आपका ईडीआर फॉर्म के थ्रू आपका फिल किए जाते हैं, ठीक है? सो ईडीएफ फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट, बी एनेक्सेस टू द relative shipping bill to the concerned commissioner of the custom, ठीक है? तो वहां का जो भी कमिश्नर है उसके पास उनको इसको सबमिट करना होता है, ठीक है? सो आफ्टर वेरीफाइंग एंड ऑथेंटिकेटिंग द डिक्लेरेशन इन फॉर्म EDF, the commissioner of custom will hand over the to the exporters one copy of the shipping bill, marked exchange control copy के रूप में उसको वो दे देगा, ठीक है? In which EDF has been approved for the submitted to the authorized dealers. तो ये आपका जैसे exporters they'll fill the EDF form, ठीक है, ऑनलाइन आपका, देन आपका जो कस्टम कमिश्नर है they'll क्रॉस वेरीफाई द थिंग्स इन अदर्स, देन आपका अप्रूव करेंगे एंड they'll issue a copy which is known as exchange control copy, and exporters they have to submit this particular one to the authorized dealers आपका. अब there are some areas, ये बहुत important एरिया आपका पार्ट है,
विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ईडीएफ फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे यू डू नॉट हैव टू फिल द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म आपका। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं। मोस्टली ये एरियाज आपके कौन से हैं जहां पे गवर्नमेंट के ऐसे कोई भी ट्रांसफर्स होते हैं, या आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, या कोई एड आपका प्रोवाइड की जा रही है किसी कंट्री को, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपका सैंपलिंग के लिए बाहर भेजी जा रही है, या कोई आपका कोई हमने आपका एयरक्राफ्ट खरीदा, उसका कोई पार्ट खराब है, वो रिपेयर के लिए बाहर जा रहा है, फिर वापस आएगा। सो दीज आर जनरली थिंग्स विच आर जनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ईडीएफ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो क्या क्या एरियाज हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, बहुत सारा डेटा आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, सो फॉलोइंग एक्सपोर्ट शिपमेंट्स आउट ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम export declaration form in term of the cases indicated in regulation 4 of FEMA, foreign exchange management, export of goods and services regulation dated 12 of January 2016। कौन कौन से हैं? पहला, trade samples of goods and publicity material सब shipped free of payment। ठीक है, जैसे हमने मार्कर्स बनाए, हम इनको किसी कंट्री में जो हमारा टारगेट मार्केट होने वाला है वहां पे हम इनको सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, एंड वी आर सेंडिंग दिस पर्टिकुलर वन फॉर फ्री। ठीक है, इसके लिए हम उनसे कोई पेमेंट आपका नहीं ले रहे, जो हमारा वहां का वेंडर है। सो इट इज एग्जेम्प्टेड। पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रेवलर्स वेदर अकम्पनीड और अनअकम्पनीड। तो ये बेसिक आपका जो पर्सनल हम लोग जाते हैं, ट्रेवल करते हैं या छोटा मोटा सामान जो लेके चलते हैं। ठीक है, शिप स्टोर्स, ट्रांसशिपमेंट कार्गो एंड goods supplied under the order of central government of such officers as may be appointed by the central government in this behalf or of the military, naval or air forces authorities in India। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे राहत पैकेज जो आपके भेजे आते हैं अदर्स, तो वो भी आपके क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे। तो वहां पे बट हाँ, देयर विल बी अ अप्रूवल कॉपी फ्रॉम द डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्री, राइट? By way of gift of goods accompanied by a declaration by the exporters that they are not more than 5 lakh rupees in value। ठीक है, तो अगर किसी एक्सपोर्टर के द्वारा कोई गिफ्ट आपका भेजा जा रहा है एंड जिनकी वैल्यू इज लेस देन 5 लाख रुपीज। एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन एंड स्पेयर पार्ट for overhauling or repair abroad subject to their re-import into India। जैसे हमने एयरक्राफ्ट की बात करी थी, या कोई भी, जैसे हमने कोई आपका जेट परचेज किया या डिफेंस के लिए कोई आइटम आपका आया है, ठीक है, जिसका कोई पार्ट आपका रिपेयर के लिए अब्रॉड जा रहा है और फिर वो वापस आएगा। ठीक है, या कोई भी एयरलाइन कंपनी का जो आपके स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब आपका। ठीक है, रिप्लेसमेंट गुड्स एक्सपोर्टेड फ्री of charge in accordance with the provisions of foreign exchange foreign trade policy in force for the time being। तो अब यहाँ पे जैसे हमने किसी like being an exporter, हमने किसी को आपका कुछ सामान एक्सपोर्ट किए, there was some product was defective। ठीक है, जैसे 1 लाख मार्कर भेजे जिसमें से 10,000 मार्कर आपका डिफेक्टिव थे। ठीक है, तो ये 10,000 मार्कर हम लोग भेज रहे हैं सेम कंसाइनमेंट के तहत, सो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। ठीक है, गुड्स सेंड आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग सब्जेक्ट टू री इम्पोर्ट इंडिया। जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका टेस्टिंग किसी दूसरे कंट्री में हो रहा है, ठीक है, बट वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो वहां जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, राइट? इसके अलावा एक्सपोर्ट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट subject to the term and conditions if any as stipulated in the permissions। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा कोई एक्सपोर्ट आपका जिसको परमिट किया गया एंड ऑथराइज लेटर के साथ वो आपका जा रहा है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो परमिटेड। सो दीज आर सम एरियाज जहां पे आपको ईडीएफ फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा सारे अदर एरियाज जहां पे ईडीएफ का रिक्वायरमेंट होगा। सो ईडीएफ इज अ डॉक्यूमेंट्स व्हिच एक्सपोर्टर्स नीड टू फिल और प्रेजेंट विद द ऑथराइज्ड डीलर्स, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके सारे आगे की जो जर्नी है वो आपका चल रही है। ठीक है, सो नाउ फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस यूनिट को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, इसको क्या किसी को भी मत लीजिएगा। ठीक है, मेरा सजेशन तो यही रहेगा। ठीक है, सो एक्सपोर्ट फाइनेंस की हम लोग अब बात करेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने एक्सपोर्टर्स के संबंध में कभी भी फाइनेंस को स्टडी किया होगा, तो देयर आर मेजरली दिस कैन बी divided between two part, one is pre-shipment and another one is post-shipment। ठीक है, pre-shipment is like आपका जब एक्सपोर्ट हो रहा है
उससे पहले का, ठीक है, जैसे जिसका जनरल टाइम ड्यूरेशन आपका 90 डेज होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग क्रेडिट, राइट। पोस्ट शिपमेंट्स आपका जो बिल्स डिस्काउंट होते हैं, ठीक है, सो जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनको डिस्काउंट किया जा रहा है, जहां पे फैक्टरिंग, फोरफिटिंग या अदर्स बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फ्रेम स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर फाइनेंस टू एक्सपोर्टर्स so as to allow finance at concessional interest rate to make exporters compete with their competitors from other countries and also to boost the export from the country. So RBI first introduced this particular scheme, export finance, in 1967. The scheme is intended to make a short-term working capital finance available to exporters at internationally a comparable interest rate. Export credit is available both in rupee as well as in foreign currency. तो basic static है. The Reserve Bank of India has also permitted bank allow both packaging credit as well as पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है। तो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट, जैसे हम लोग इसके ऊपर आपका डिस्कशन कर रहे थे। सो एक्सपोर्टर्स दे कैन अप्लाई फॉर प्री शिपमेंट्स और दे कैन अलाउ फॉर आपका अप्लाई फॉर दी पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस। प्री शिपमेंट में जनरली आपका इट इज नोन एज पैकेजिंग क्रेडिट। एग्जिम की पॉलिसी भी इसी से लिंक है आपका, जब आप एग्जिम को पढ़ोगे वहां पे, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट इज बेसिकली आपका जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है। कंपनीज दे नीड फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, सो दे कैन डिस्काउंट दोज पर्टिकुलर बिल, जैसे जिसमें आपका फैक्टरिंग, फोरफिटिंग ये आपका हो सकता है, या अदर्स आपका they can apply for the other kind of loan. So first we will talk about packaging credit facility for exporters. It is also known as pre-shipment. Packaging credit क्या हो गया, इसका ड्यूरेशन होता है 90 डेज, ठीक है। सो जो डेट ऑफ शिपमेंट है उससे उसके 90 डेज के लिए आपका ये लोन आपका लिया जा सकता है, ठीक है। उसके भीतर आपका 90 डेज के लिए द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन इज 90 डेज बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका जैसे कोई भी अगर हम लेट्स से हम अगर मार्कर्स को आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो लेबर की वेजेस है या इसका असेंबलिंग है, पैकेजिंग है, उन सब चीजों के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो बैंक एक्सपोर्टर्स दे कैन अप्रोच टू बैंक्स एंड दे कैन अवेल दीज काइंड ऑफ लोन्स व्हिच इज अलाउड बाय द आरबीआई। तो इसमें आपका पैकेजिंग क्रेडिट लोन और एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट, एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक्स इन अदर्स, ठीक है। जैसे कुछ एरियाज होते हैं जहां पे गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करती है कि अगर आप इन कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं, सो विल गेट सम ड्यूटी ड्रॉबैक ऑल्सो। वहां पे इनिशियली वो चार्ज होंगे, बट लेटर ऑन यू कैन ड्रॉबैक दोज पर्टिकुलर, तो उनको भी आप पहले अवेल कर सकते हैं। सो पैकेजिंग क्रेडिट लोन और एक्सपोर्ट क्रेडिट is essentially a working capital advance allow for a specific purpose of procuring, processing, manufacturing of goods meant for export only. It could cover all costs prior to shipment of the finished good, like packaging, local transportation, labor charges and etc. ठीक है, so these are the areas. So usually it is for working capital management, ठीक है। The borrower is a bank of customers, ठीक है, पहली चीज। They should have export import कोड, ठीक है। सो आईईसी कोड आपका, ठीक है, अलॉटेड बाय डीजीएफटी। देयर नेम शुड नॉट अपीयर अंडर द कॉशन लिस्ट ऑफ आरबीआई। नाउ दिस इज अ न्यू थिंग, ठीक है। कॉशन लिस्ट क्या होता है, ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनके ट्रांजेक्शन्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है पास्ट उनमें, ठीक है। सो ऑथराइज्ड डीलर्स they'll highlight those particular exporters to RBI. वो बोलेंगे भैया ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, and RBI will put them in a caution list, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस चलता है। इनिशियली इट इज ट्रिगर्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स, उनके पास ये राइट होते हैं, ठीक है। ये डेली बेसिस पे चीजें होती है, ठीक है। तो आपका जैसे उसने कुछ गड़बड़ किया है तो उसको आपका जो भी गाइडलाइंस उनको फॉलो नहीं करें ना दस, तो RBI will put these kind of exporters in caution list, and if you are part of caution list, RBI will release that particular one. ED PMSP अपडेटेड रहते हैं कौन कौन से caution list में हैं, तो वो लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। They should not be under specific approval list of ECGC, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के भी आपका वो caution लिस्ट में या आपका स्पेशल अप्रूवल लिस्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। So, इसके अलावा दे हैव द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड हैज जेन्यून एंड वैलिड एक्सपोर्ट ऑर्डर
विच इज बैक्ड बाय एलसी, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं आपका विदाउट रिकोर्स वाली जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो जहां पे आपका दे हैव सॉलिड प्रूफ फॉर दैट पर्टिकुलर वन पेमेंट्स एंड अदर्स। एक तो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, दूसरा दे हैव अ कंफर्मेशन ऑफ द पेमेंट्स, ठीक है। आपका नो योर कस्टमर गाइडलाइंस आर कंपाइल्ड विद, ठीक है, तो केवाईसी गाइडलाइंस आपकी होनी चाहिए। तो पहला आपका प्री शिपमेंट, अब दूसरा हमारे पास है पोस्ट शिपमेंट, ठीक है। ये जो गाइडलाइंस है ना, दीज गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे होंगे, सो यू विल सी जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, सो देयर विल बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, 3 सही है, और वो उनमें से एक आपका इनमें से पॉइंट होगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, राइट। चलो अब आते हैं हमारे पास पोस्ट शिपमेंट, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट्स आपके बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट्स इज बेसिकली जहां पे जो एक्सपोर्टर है उसने अपनी सारी कमिटमेंट फुलफिल कर दी है, ठीक है, कंसाइनमेंट में जा चुका है सामान। नाउ अब बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, तो जैसे दो हमने पढ़े थे, एक तो होता है उस सेंस आफ्टर लाइक जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे वैसे ही पेमेंट हो जाएगा, तो वहां पे तो रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बट ऐसा बार बार नहीं होता। यूजुअली पेमेंट्स कैसे होती हैं आपका, दे हैव अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन। एक तो आपका जो शिपिंग का टाइम होता है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, देन आपका दैट पर्सन और द इम्पोर्टर विल रिसीव द गुड्स, देन उसके बाद दे आस्क फॉर 30 डेज, 40 डेज। तो ऐसा आपका जो बिल्स रिसीवेबल्स है उनमें कई बार टाइम हो जाता है, ठीक है। सो नो, अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है उनको देखते हैं पहले, ठीक है। सो नो प्री शिपमेंट आपका क्रेडिट इज अवेल बाय द दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्टर, ठीक है। तो पहले उसने आपका कोई भी पीसीएल आपका नहीं लिया है, ठीक है। सो आपका जो प्री शिपमेंट जो लोन है वो नहीं लिया हुआ है, ठीक है, हैज बीन अवेल बाय हिम against the same order or LC from the any other bank. Bank should call credit report or status report on the foreign buyers. तो जो फॉरेन बायर्स है, ठीक है, उसका क्रेडिट रिकॉर्ड, क्योंकि डिफॉल्ट की प्रॉबिलिटी है, सो दैट विल बी चेक बाय दी आपका जो भी बैंक होगा, ठीक है, जो एक्सपोर्टर को फाइनेंस कर रहा है। एक्सपोर्टर शुड सबमिट स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द गुड्स ऑन विच पीसीएल हैज बीन अलाउड, ठीक है। तो अगर कोई पीसीएल आपका अलाउ है तो उस पर भी आपका ये चेक होगा, ठीक है। If the exporter are covered under letter of credit, bank would need to be satisfied about the standing of the क्रेडिट ओपनिंग बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है आपका, जैसे यूएस का एक बैंक था एबीसी जिसने एलसी जारी किया था, ठीक है, तो दैट मींस ही इज प्रोवाइडिंग स्टैंड बाय गारंटी, बट हाँ उस बैंक की सॉल्वेंसी को चेक करना दैट इज अ स्टेप इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, कि उस बैंक की कैपेसिटी है वो फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो बैंक का क्रेडिट भी यहाँ पे चेक किया जा रहा है। बैंक में ऑल्सो लुक इनटू द रेगुलेशन, द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बायर्स कंट्री, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब एक तो हमारी कंट्री के साथ उनके रिलेशन, अर्लियर देयर वाज अ टाइम विद मालदीव, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, या कोई कंट्री लाइक जैसे अभी बांग्लादेश आपका फेस कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ना हो जहां डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कैन बी वेरियस टाइप एज अंडर, अब कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। अभी तक हमने आपका किन एरियाज में क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। नाउ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कैन बी वेरियस टाइप, जैसे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज एसेंशियली एंड एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इन्वॉल्व हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, sending the documents of the foreign banks and collecting the funds thereof, ठीक। अब जनरली इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप सपोज दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू दी फोरफिटिंग या फैक्टरिंग रूट, ठीक है, तो उसमें जनरली क्या होता है, जैसे देयर इज एक्सपोर्टर हुज बिल इज 10 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, 10 मिलियन यूएस डॉलर का उसका ये ट्रेड था, ठीक है। सो नाउ सपोज दैट इट इज अ केस ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है, फैक्टरिंग के थ्रू आपका वो बैंक से there is a XYZ bank who is factor for this particular ABC exporter, ठीक है, ABC exporter के लिए आपका factor का काम कर रहा है, ठीक है। So factoring is always on an open account basis, ठीक है, तो इन दोनों का पहले से आपका लिंक है, जिस इस ABC एक्सपोर्टर के जितने भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं दैट इज जनरली हैंडल्ड बाय द XYZ बैंक, ठीक है। तो ये क्या करेगा ऑन बिहाफ, जैसे एक्सपोर्टर ने आपका ये 10 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया, अब इसने इसमें से जैसे सपोज दैट 80 to 85% का आपका अमाउंट ले लिया किससे, एबीसी बैंक से, ठीक है। सो इसको आपका डिस्काउंट करवा लिया,
और एक जो भी उस पर इंटरेस्ट या कमीशन उन दोनों का था उसको डिसाइड करने के बाद, ठीक है। सो रिमेनिंग आपका 20 to 15% इज ऑन ओपन अकाउंट बेसिस। अब दूसरा ट्रेड होगा वहां पे। नाउ आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस factor is XYZ bank, they'll take care about all these particular things, ठीक है। तो वहां पे जो बैंक है, they'll take about the export documents या जो भी लेजर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं that generally get managed by the bank itself, ठीक है। So advance against bill sent on collection, it can be first, advance against exporter on consignment basis, advance against undrawn balances and advance against duty drawback, ठीक है। So these are the major finance areas which can exporter avail from their bank, और जो भी जिस भी बैंक के साथ वो आपका ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब आता है आपका EDPMS, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आपका EDPMS है वैसे ही आपका इंपोर्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दोनों ही 2014 के अंदर आपका इनको लॉन्च किया गया RBI के द्वारा। बेसिकली इट्स अ पोर्टल, ये एक आपका पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल आपका है, वेब बेस्ड पोर्टल, ठीक है, जिसमें ऑथराइज डीलर्स आपका जितने भी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन सबका डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहा होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट भी कर रहा है तो उस डिफॉल्ट की जानकारी भी, सो आरबीआई कैन पुट दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्टर इनटू योर कॉशन लिस्ट या अदर्स ऐसे जो रहेंगे, ठीक है। सो आरबीआई कमेंट्स अ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इन 2014. This is an online program for all Indian banks to record exporters' transactions with them online. Thus, RBI can increase the transparency of record of dollars payments flow between India and abroad. ठीक है, तो यहाँ पे सारे हमारे पास रियल टाइम बेसिस पे आपका डेटा रहने वाला है। Authorized dealers bank can access the updated list of caution listed exporters through EPDMS on daily basis, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कोई ऑथराइज डीलर बैंक इस प्लेटफॉर्म से लिंक है, अगर उनके उसमें हो रहा था they'll update on that particular one and RBI will mark that particular exporter as cautionless, तो वो दूसरे उसके पास नहीं जा पाएगा, पकड़ा जाएगा, ठीक है। RBI will caution or decaution the exporters based on the recommendation of authorized dealers bank, ठीक है। डिकॉशन भी अगर जैसे एक से एक कई बार जानबूझ के गलती नहीं तो हो गई, उसने उस गलती को सुधार दिया, तो उसको ऑथराइज्ड डीलर विल रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो एंड आरबीआई विल डिकॉशन। कॉशन का हमने बात किया। ऑथराइज्ड डीलर्स मे फॉरवर्ड इट्स फाइंडिंग टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई recommending inclusion the name of exporters in the caution list also, ठीक है। तो caution and decaution, the guidelines require bank to record advance remittances received for export and EDPMS, कोई भी एडवांसेस अगर वो रिसीव करा, ठीक है, लेट्स से 10 मिलियन यूएस डॉलर का था, उसमें से 3 मिलियन यूएस डॉलर उसने दिए, सो दैट विल आल्सो गेट अपडेटेड इन दिस, और जो 7 मिलियन जो अभी आउटस्टैंडिंग है उसका भी अपडेट यहाँ पे रहेगा। Besides, bank will also be required to record old outstanding advances received. कोई ऐसा पुराना था जो आपका पेंडिंग में था, वो अगर रिसीव हुआ तो वो भी यहाँ पे अपडेट किया। तो एवरीथिंग अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, तो एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड और इंपोर्ट है तो इंपोर्ट, दोनों ही आपका सेम पोर्टल है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर की एंट्री के साथ आपका, ठीक है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बैंक भी ऑफर करते हैं, दैट इज गोल्ड कार्ड स्कीम, ठीक है। तो गोल्ड कार्ड स्कीम आपका जनरली क्या है, गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, ऐसे वैल्यू एक्सपोर्टर्स के लिए या जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस काफी हाई है और या जो काफी समय से सिस्टम में काम कर रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड एक्सपोर्टर्स। गुड एक्सपोर्टर्स मींस आपका उनका जो रिलेशन है, कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया, अदर्स टाइमली बेसिस पे पेमेंट करते हैं अदर्स, वो सब, एंड इट इज गेट इशूड बाय ईच एंड एवरी बैंक इन इंडिया नाउअडेज। आपका बैंक भी इसको इशू करता है। हर एक बैंक में कुछ अलग अलग ऑफरिंग्स भी होती हैं, जैसे आपको एडिशनल क्रेडिट मिल सकता है 20% तक का, या फिर आपका जैसे मतलब जो अदर एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से थोड़ा सा आपको कम रेट पे मिलेगा। आप जैसे डेबिट कार्ड देते हैं, चेक फैसिलिटी देते हैं या फॉरेन रेमिटेंसेस देते हैं, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द इंडिकेशन मेड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2003-4 to launch a gold card scheme for credit worthy exporters with good track record for easy availability of export credit on best terms. RBI
हैज ड्रॉन अप गोल्ड कार्ड स्कीम, ठीक है। तो ये भी स्कीम आपका आरबीआई के द्वारा, मतलब आरबीआई एडवाइस टू बैंक्स दे कैन कम अप विद दिस पर्टिकुलर। क्या क्या फीचर्स होते हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सो ऑल क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स including those in small and medium sectors with good track record would be eligible for issue of gold card scheme by individual banks as per the criteria to be laid down by the letter. Gold card under the scheme may be issued to all eligible exporters, including those in the small and medium sectors who satisfy laid down conditions. The scheme will not be applicable for exporters blacklisted by ECGC, ऐसे एक्सपोर्टर जिनको ECGC के द्वारा blacklist किया गया, और having overdue in excess of 10% of previous year turnover। जैसे किसी कंपनी ने आपका, किसी एक्सपोर्टर ने आपका, जैसे उसका जो टोटल रिसीवेबल्स था वो था आपका 10 मिलियन यूएस डॉलर, और अभी तक भी वो रिसीव नहीं हुआ, उसमें से सपोज दैट अभी आपका, मतलब सपोज दैट 50% आ गया, बट 50% अभी भी पेंडिंग में है आपका, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट इज मोर देन 10%, तो उनको भी आपका ये इश्यू नहीं किया जाएगा, राइट। गोल्ड कार्ड होल्डर्स एक्सपोर्टर्स depending on their track record and credit worthiness will be granted better term of credit including rate of interest than those extended to other exporters, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अंदर कंसेशन आपका मिलेगा, ठीक है, जो कि मिलना चाहिए बिकॉज they are value exporters for the nation. Bank would clearly specify the benefit they would be offering to gold card holders, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ बैंक आपके एडिशनल अलग अलग आपके ऑफर्स देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो, ठीक है। The sanction and renewal of limit under the scheme will be based on a simplified procedure to be decided by bank itself, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा? बैंक, ठीक है। तो जो इनिशियल लिमिट है आपका, उसमें अगर उसको इंक्रीज करना, कैसे इंक्रीज होगा, उसकी टर्म एंड कंडीशन विल बी डिसाइडेड बाय बैंक, टेकिंग इनटू अकाउंट द एंटिसिपेटेड एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड track record of exporters. The bank may be determine need based finance with the liberal approach, ठीक है। In principle limit would be sanctioned for a period of 3 years, ठीक है। जो इनिशियल आपका, ठीक है, जैसे आपको किसी को 5 करोड़ का दिया, सो दिस इज इन प्रिंसिपल आपका बेसिक उसके लिए, ठीक है। सो फॉर इट विल बी फॉर 3 years, उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस होंगे, विद अ प्रोविजन फॉर ऑथेंटिक रिन्यूअल सब्जेक्ट टू fulfillment of term and conditions of the sanctions, और standby limit of not less than 20%, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। So I'll highlight this particular one, ठीक है। So please do remember this one. This is one of the core feature of your gold card scheme, ठीक है। So standby limit का मतलब है, like let's say there is a gold card scheme जिसका लिमिट है आपका 10 करोड़, ठीक है। तो अब इस पे आपका एट ए टाइम, जैसे कोई एक्सपोर्टर आपका जिसको ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, सो दे कैन बेसिकली लाइक जैसे 10 करोड़ है तो उसका 20% तक एक्स्ट्रा व्यू आपका जा सकते हैं, ठीक है। सो स्टैंड बाय लिमिट नॉट लेस देन 20% ऑफ द असेस्ड लिमिट may be additionally made available to facilitate urgent credit need for executing sudden orders, ठीक है। तो जैसे अगर 100 करोड़ है तो 120 करोड़ तक का, या वो ये आपका कितना होगा आपका बेसिकली बैंक डिसाइड करेगा, बट मिनिमम इट विल बी 20%, विच इज आपका एज पर द गाइडलाइंस। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। गोल्ड कार्ड होल्डर्स वुड बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ granting packaging credit in foreign currency also. Bank would consider waiver of collateral and exemption from ECGC insurance on the basis of cardholders credit worthiness and track record also, ठीक है। एक और facility, the facility of further value addition to their card through supplementary services like ATM, internet banking, international debit and credit cards may be decided by the issuing bank, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स होते हैं कि हम, जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके आए, राइट। सो दिस इज द वन। तो गोल्ड कार्ड स्कीम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे मेरे को आपका ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिला था, सेम चीजें यहाँ पे भी, ठीक है। वो आपका उसी तरीके से आप इसको देख सकते, ऐसे ही आपके बैंक का भी, हर एक बैंक आज के डेट में इसको ऑफर करता है, जो वैल्यू एक्सपोर्टर्स है उन सबको, ठीक है। सो अब अगर हम लोग बात करें पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज
फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग। ठीक है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगले 5 से 7 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुने विद फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको अगर इसको ब्रीफ करूं, ठीक है, सो अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टरिंग का, ठीक है, सो फैक्टरिंग इज बेसिक, फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग। ठीक है, सो इन दोनों में डिफरेंस आपका क्या है, यहाँ पे इट इज लाइक जो एक्सपोर्ट जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, लेट्स से देयर इज एन एक्सपोर्टर्स हु इज गोइंग टू रिसीव 10 मिलियन यूएस डॉलर का इसका एक्सपोर्ट है आपका। ठीक है, सो देयर इज अ एक्सपोर्टर कॉल्ड एबीसी हु ओन दिस पर्टिकुलर बिल। अब ही इज गोइंग टू रिसीव दिस पर्टिकुलर बिल आफ्टर पोस्ट शिपमेंट 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के बाद ये इसको रिसीव करेगा, क्योंकि 3 महीने तो ये शिपमेंट में ही रहेगा। ठीक है, उसके 3 रिसीव करने के 3 महीने के बाद वो देगा। और अब ये हो सकता है इट कैन बी बैक्ड बाय एलसी और नॉट। ठीक है, दो ही सिचुएशन हो सकती है, ये बैक बाय एलसी भी हो सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ फोरफिटिंग, फोरफिटिंग तभी होगी इफ इट इज बैक बाय एलसी। ठीक है, और इसीलिए हम लोग फोरफिटिंग को बोलते हैं विदाउट रिकोर्स, जहां पे आपको कोई और गारंटी रखने की जरूरत नहीं होगी। एंड इट कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स। ठीक है, तो आपका जो फोरफिटिंग है वहां पे जनरली क्या होता है कि जो फैक्टर है, फैक्टर इज योर बैंक। ठीक है, सो जो भी आपका, जैसे सपोज दैट एसबीआई, सो इन केस ऑफ दिस एसबीआई विल लाइक ये जो आपका एबीसी बैंक की सारी ट्रांजेक्शन है दैट इज जनरली हैंडल बाय आपका एसबीआई। ठीक है, एज अ फैक्टर। ठीक है, एज ए फैक्टर आपका एसबीआई इसकी सारी ट्रांजेक्शंस को होल्ड कर आपका मैनेज कर रहा है। एंड हर एक बिल पे दे अलाउ आपका अराउंड 80 to 85%। ठीक है, तो इमीडिएट पेमेंट्स आपकी जो होंगी, जैसे इसने ये कंसाइनमेंट आपका शिपमेंट में गया, आपका पोस्ट शिपमेंट हो गया। ठीक है, शिपमेंट होने के बाद आपका एबीसी कैन अप्लाई विद एसबीआई कि भैया आप हमें आपका 80 मिलियन का, सॉरी 10 मिलियन का 80% दे दो, तो वैसे 8 मिलियन, बाकी आपका इतना कमीशन, ये सब। ठीक है, फिर दूसरा कंसाइनमेंट होगा, इसने एबीसी ने एक दूसरा कंसाइनमेंट किया, तो एबीसी की जितनी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है वो किसके द्वारा मैनेज की जा रही है, एसबीआई के द्वारा। सो इट इज जनरली नोन एज एन ओपन अकाउंट बेसिस, इट इज बेस्ड ऑन ओपन अकाउंट। ठीक है, ओपन अकाउंट का मतलब ही यही है कि जैसे इसका 80%, फिर 20% अगली बार मिल जाएगा, फिर अगले वाले का 80%। सो इट कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स, जहां पे एसबीआई क्या रख सकता है, थोड़ा बहुत इस काइंड ऑफ जो अमाउंट है उसका एज अ गारंटी। ये आपका दूसरे केस में क्या हो रहा है, आपका अगर हम लोग फोर्थ फिटिंग के केस में बात करें, यहाँ पे 100% बिल गेट डिस्काउंट। ठीक है, 100% बिल डिस्काउंट आपका हो जाता है जो भी फाइनेंसर आपका होगा। ठीक है, सो सपोज दैट देयर इज XYZ फाइनेंशियल, ठीक है, जिसने एबीसी से, या आपका देयर इज एबीसी एक्सपोर्टर्स, ठीक है, उसने इसका 100% बिल डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, मतलब इट इज बैक बाय एलसी, इसलिए इसका एलसी बैक होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा बहुत गारंटी आपका है, या ओपन अकाउंट पे दूसरे ट्रांजेक्शन का पैसा सब कुछ है। यहाँ पे इनका रिलेशन, XYZ एंड एबीसी का रिलेशन वन टाइम काइंड ऑफ है। ठीक है, कि हमें ये आपका इतना पैसा मिलने वाला है, आप इस इतना कमीशन हो, इतना हमें आप अभी पेमेंट कर दो। सो यहाँ पे अगर एलसी बैक नहीं होगा तो हो सकता है कल के डेट में डिफॉल्ट हो जाए। ठीक है, सो दैट इज द वन, सो इट इज ऑलवेज बैक बाय एलसी। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स आपका, कि जिससे एक स्टैंड बाय गारंटी दूसरी कंट्री का बैंक उसको मिलेगा। इन बोथ द केसेस, आफ्टर एंटरिंग इनटू फैक्टरिंग और फोरफिटिंग, the entire ledger is managed by the factor और दी फाइनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पे फाइनेंसर आपका बोलते हैं। एक्सपोर्टर को फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो बिल सबमिशन है या आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय दी आपका जो भी उसके लिए फैक्टर, या जो फैक्टर या आपका जो फाइनेंशियल होगा उसके द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी बुक के ऊपर जो डेफिनेशन है। सो बिसाइड द रेगुलर फाइनेंसिंग एवेन्यूज फ्रॉम बैंक, द एक्सपोर्टर आल्सो हैव एक्सेस टू other avenues of financing which also act as risk management product, factoring and forfeiting। तो पहले फैक्टरिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फैक्टरिंग इज डिफाइंड एज continuing agreement between a financial institution which is known as a factor, जैसे हमारे केस में SBI था, एंड अ बिजनेस कंसर्न, जैसे हमारा कौन था, ABC था। ठीक है, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू ट्रैक customers on open account basis। ठीक है, open account basis whereby the factor purchase the client book debts either with or without recourse। ठीक है, so recourse means kind of guarantee या कोई security आपका। ठीक है, so it can be with security or without security to the client and in relation there to control the credit extended to the customers and administrators
दी सेल्स लेजर, ठीक है। तो इसके बाद जो सारा सेल्स लेजर है दैट इज जनरली हैंडल्ड बाय द फैक्टर, राइट। सो यहाँ पे आपका मैंने समराइज करके आपके लिए रखे क्या क्या पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So immediate financing up to 75 to 80% of the invoice value. No need for LC, thus saving cost for the importers. Credit check on importers or buyers. Sales ledger maintenance, credit protection on all approved debit limits, advisory services for new areas, avenues in countries or importers. ठीक है, so these are some facilities which are generally provided by factor to the exporters और it is an open account basis transaction, ठीक है। तो ये मतलब क्या हो गया, दो कंपनीज, एक एक्सपोर्ट कंपनी है एक आपका बैंक, उन दोनों के बीच में काइंड ऑफ एक परमानेंट रिलेशन है जहां पे बैंक उसको फाइनेंस कर रहा है उसकी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर और आपका दोनों का ही फायदा है, एक विन विन सिचुएशन, ठीक है। सो क्या क्या फैसिलिटीज आपका प्रोवाइड की जाएंगी, सो नाउ विल नॉट गो इन डिटेल, आपको उस पॉइंटर से ही समझ में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आई शेयर दिस पीडीएफ, ठीक है। पहला, डेट एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन केयर बाय फैक्टर, ठीक है। दूसरा, आपका क्रेडिट प्रोटेक्शन आपका हो गया, ठीक है। तीसरा, फैक्टर फाइनेंसिंग आपकी होगी, ठीक है। सो ये कुछ फैसिलिटीज आपका विच एक्सपोर्टर विल गेट फ्रॉम द फैक्टर। दूसरा आपका फोरफिटिंग, ठीक है। फोरफिटिंग जैसे हमने बोला इट इज विदाउट recourse, ठीक है, बिकॉज it is backed by LC, ठीक है। So another product for financing of exporters export receivable is forfeiting. It can be defined as a mechanism for financing by discounting of export receivables without recourse, ठीक है, to the exporters or seller for a medium term on a fixed rate basis for full value of contract or invoice, ठीक है। In another word, forfeiting the purchase by the financier of medium export claims on the buyers without recourse to the exporters. It is a source of finance and not a type of credit insurance. As such, no other cost other than financing cost are involved in this particular one, ठीक है। तो आपका इस तरीके से take away political and commercial risk associated with export receivables, make 100% finance against invoice drawn without recourse facility, freedom from credit administration and follow-ups जो वहाँ पे भी था, cost savings on export credit insurance beside related paperwork, fixed rate of finance, freedom from movement of interest rate for the tenure of the bill, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट मैंने कुछ पॉइंटर्स के थ्रू फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समराइज किया, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं। फैक्टरिंग इज अ शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन वेयर फोरफिटिंग इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन। Factoring can be drawn with or without recourse, although forfeiting is done without recourse. Factoring is applicable to both foreign and domestic transactions. Forfeiting applicable only to international transactions. Factoring is appropriate for ongoing open account sales, and forfeiting, which is that are not backed by LC, accepted by bill of exchange, whereby forfeiting is appropriate for one-time transaction which are backed by LC, ठीक है। आपका फैक्टरिंग necessitates a continuum arrangement between the factor and the customer in which sales are routed by the factor, but in forfeiting it is a one time, so यहाँ पे आपका वो नहीं रहेगा। तो जो हमने अभी तक का पूरा इतिहास पढ़ा उसको जो एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके से मिलेगा, इन 5 स्टेटमेंट में से 4 स्टेटमेंट मिलेंगे और उन 4 में से एक गलत होगा जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। So this is all about your facilities for exporters. Now I'll check the time. So then we'll continue. Yes, हाँ, we do have time. ठीक है. So now आपका facilities for importers. अब यहाँ पे आधी चीजें आपको पहले ही समझ में आ गई कि जैसे will be requiring import export code, ठीक है, नंबर, ठीक है, IEC का requirement होगा. Again, we know about the जैसे DGFT who generally design the import policies for India. And we have RBI who generally handle the documentation part and payment and settlement. तो थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी. Keeping in view the need to conserve the precious foreign exchange and to guard the countries from
scrupulous import and bogus outward remittances, various export import regulation. This is this basic है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. The physical movement of goods into India is regulated by foreign exchange foreign trade policy formulated by DGFT. The regulation relating to payment of such import and import are governed by uh, EXIM controlled regulation frame under FEMA 1999 and FEMA is governed by RBI. ठीक है. सो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपका तो दो मेजर बॉडीज, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़े थे, ठीक है. आईईसी का रिक्वायरमेंट होगा, कोई अगर इम्पोर्टर भी होगा तो उसको भी आपका आईईसी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है. सो फ्रीली परमिसिबल और इम्पोर्ट लाइसेंस. While authorized dealers are required to ensure that goods imported or intended to be imported are as per the current foreign trade policy, the goods can be freely imported or can be imported under specific license issued for the purpose by the DGFT. This has to be ensured prior to making import remittances, handling of import bills for collection or opening of letter of credit for import of goods. For this purpose, the authorized dealer should verify foreign trade policy or public notice issued by DGFT. ठीक है, तो यहाँ पे DGFT की जो गाइडलाइंस है ना, ठीक है. अब यहाँ पे ना एक important point आएगा अभी, ठीक है. So that is there is a form. Any person who want to make a remittance for import should make an application as prescribed by RBI to authorized dealers. तो जैसे आपका एक्सपोर्ट में था वैसे ही, ठीक है. आपका the application should contain the detail of currency, the total value of imports, commodity, the license number, along with the undertaking by the importers that they will comply with the exchange control regulations, kind of declaration. ठीक है. So import आपका finance. There was one license. एक आपका ना एक फॉर्म होता है, ठीक है. So EBR आपका इसको बोलते हैं या IBBR समथिंग. देयर इज अ फॉर्म, मे बी इट विल कम. अगर नहीं आएगा तो मैं आपको करा दूंगा उसको कभी, ठीक है. सो इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट. सो एलसी हम लोग जानते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा सेशन लगा करके. इम्पोर्टर गेट एलसी लिमिट सैंक्शन फ्रॉम हिज बैंक एंड स्टेब्लिश एलसी ऑन डीए बेसिस उसेंस. ठीक है. सो उसेंस आप ये मतलब डिमांड बेसिस हो सकता है, उसेंस बेसिस हो सकता है. देयर बाय गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर्स on the strength of his bank credibility, right? Import loan. Such loan are at time granted against imported raw material or goods meant for trading. The loan can be against a pledge of goods or hypothecation to the financing bank. ठीक है. तो एक तो LC है हमारा, और LC को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, पूरा एक यूनिट आपका, ठीक है. सो LC इज the most important documents in foreign trade, import export दोनों साइड में आपका, ठीक है. इसके अलावा भी we do have options for importers. आपका जो importers जिसके थ्रू लोन दे सकते हैं, so it can be आपका जो कहीं ना कहीं उनको प्लेस और हाइपोथिकेट किया जाएगा with some securities, right? Importers prefer such loan even at higher rate of interest, waiting for the prices of the goods to go up and to take benefit of depreciating domestic currency as well. ठीक है. So trade credit आपका जिसमें suppliers credit first one is, ठीक है. So that point is missing I guess from this. I'll check that was part of this unit only or somewhere else कि जहाँ पे ना we have to take a prior मतलब we means authorized dealers, they have to take prior approval from RBI before sanctioning that particular loan. That is known as loan reference number or something. ठीक है. अगर वो किसी और यूनिट में होगा अदर्स, I'll check that particular one. If it is part of this unit, I'll make sure कि I'll do a video based on that particular one. ठीक है. So suppliers credit directly extended by overseas suppliers of goods, ठीक है, to the importers. So suppliers credit आपका क्या हो गया कि जैसे जो एक्सपोर्टर है उसने फाइनेंस कर दिया. So that is the one, ठीक है, to the importers. As in domestic market, in international market also, the payment terms are either side or credit. The period of credit normally depend on the necessity of the for the exporters or sellers of the goods to increase sales. The demand of the goods in the market, requirements in this. Okay? The period of suppliers credit from the date of shipments, it is 3 years
for the import of capital goods. For non-capital good, so it is 1 year, up to 1 years, or the operating cycle, whichever is less. The maximum amount of supplier's credit per import transaction that bank can approve is 50 million US dollars. So suppliers credit basically जो आपका suppliers is providing that funds to the buyers, ठीक है. So आपका जो buyers, आप वहां हमारे वहां से लो, हम आपको फाइनेंस करते हैं and you have to sell that particular one in the market and then you have to repay us. Simple सा आपका, ठीक है. So that is the good. Buyers credit आपका, the buyer's credit arranged by the importer or buyers from a bank or financial institution outside his country to settle the payment of importers. In short, credit arranged by the buyers to settle import payments irrespective of period of credit. ठीक है, एक simple सा. As such, the importers approach his bank and request for arrangement of payment to the exporters on immediate terms. The bank through their own resources or correspondent relationship tie up with this. एक बहुत basic simple सा, जैसे एक there is a importer from India, वो आपके बैंक को, आपके बैंक correspondent banking के through they are making payments to sellers in their own sellers country, वो वहाँ की जो home country है उसमें, ठीक है. Like in the case of supplier credit, the period of buyer's credit, Renault, from the date of shipments to 3 years. The good thing is we have same timing for capital goods. For non-capital, it is up to 1 year. So दोनों के केस में आपका सेम है, और the operating cycle, whichever is like. Like supplier credit, the maximum amount of buyers पर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन इज 50 मिलियन, ठीक है. तो ये 3 पॉइंटर्स याद रख लें, ठीक है. वो बायर्स क्रेडिट में हो या सप्लायर क्रेडिट में, दोनों जगह ही आपके अमाउंट्स क्या है, आपका सेम है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, quickly go through the question. Which of the following correctly describe the role of RBI and DGFT, Directorate General in Foreign Trade, regulating India's foreign trade? So okay, so now I hope you guys remember this particular one, because we have discussed these particular like the export control guidelines in India. Okay? So it is majorly, or we can say primarily, driven by two institutions. One is RBI, which generally control the we generally provide guidelines toward the documentation as well as the cash flows, and the another one is DGFT, which is which is responsible for India's EXIM policy, export import policy आपका जो होती है वो आपका DGFT के द्वारा आती है, ठीक है. तो RBI regulate trade control, DGFT exchange no. RBI govern exchange control, and while the DGFT govern the trade control. So option B will be right answer for this particular one, ठीक है. So RBI govern your foreign exchange transaction under FEMA Act 1999 and provide guidelines on receipt, means documentations, and payments. Receipt and payments. Apart from the documentation part is also dealt by the RBI itself. Okay? DGFT, Directorate General of Foreign Trade, control trade policies through EXIM policy and responsible for issuing import export code आपका IEC, very important code, ठीक है. तो importer exporter code, there was one question based on this particular one, ठीक है. So let's say if you are an importer or you are an exporter, so first you have to take one code or one number from DGFT, that is generally known as IEC, and every transaction, whatever transaction you will do, either it is import or export, so while you approach the authorized dealers, they'll use this particular code and accordingly they'll account that particular one, ठीक है. तो जल्दी से आपका इनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. सो रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स फॉर बोथ द साइड, एक्चुअली वो आपका इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इन बोथ द केसेस दीज टू इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो एज वी नो दिस DGFT, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, दे जनरली डील विद द एग्जिम पॉलिसी. जो भी आयात निर्यात से संबंधित जो पॉलिसी होती है वो इनके द्वारा बनाई जाती है. Another one is RBI, the Reserve Bank of India, who generally take care about the documentation part as well as the foreign exchanges in India. Okay? So in India, export trade is regulated by DGFT, which function under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. RBI, which generally, while the policies and procedures granted under FEMA are governed by the Reserve Bank of India regulation. Similarly, for import also, import policies are designed by the DGFT, and the other part is by the RBI regulation. Okay? Apart from this, so if you talk about the FEMA,
So Foreign Exchange Management Act 1999, Reserve Bank of India with power delegated under FEMA Act 1999 regulate the exchange control and receipt payments of foreign exchange through various guidelines and all. And DGFT regulate the trade control part through the FEMA policy as well, right? Apart from this, like as we discussed in our previous unit, where we generally talk around the letter of credit. So UCP guidelines. I hope you remember that UCP 600. So UCP 600 is generally issued by the किसके द्वारा इशू किया गया था आपका ये ICC के द्वारा, ठीक है. So International Chamber of Commerce is one of the, like, it is an apex institution in the world who generally provide guidelines regarding the इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, ठीक है. तो इसकी जो गाइडलाइंस है उनको भी हम लोग आपका इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है. सो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन अक्रॉस द ग्लोब, facilitate guidelines to participate to trade through their documents like UCP 600, Uniform Rule for Collection, URC 522, Uniform Rule for Demand Guarantee URD 758 and etc. ठीक है. तो इनके द्वारा जो गाइडलाइंस है, so whenever two parties entered into a contract, buy sale contract, so they generally mention the references of these particular ones. So documents like bill of exchange or this letter of credit, they are generally बाउंडेड विद दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है. जो पेमेंट्स का आपका ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन या जो ट्रांजेक्शन का जो पूरा रूट होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दोज पर्टिकुलर गाइडलाइन. जैसे हमने एलसी के अंदर आपका एज पर यूसीपी 600 देयर आर 39 आर्टिकल्स, ठीक है. तो जो सारा एलसी स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरी जर्नी को कवर अप करते हैं, ठीक है. रेगुलेशन फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, one another institution which is indirectly get involved, that is फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका रोल क्या होता है, जो फॉरेक्स डीलर्स उनको ट्रेड करना, लाइक ऑथराइज्ड डीलर्स एंड ऑल, ठीक है. एंड उनके जो भी आपके इश्यूज हैं टू हाईलाइट दोज पर्टिकुलर वन विद आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो ये भी हमने आपका डिस्कस किया था इन आवर फर्स्ट यूनिट इटसेल्फ, राइट. So this is the entire chart which will help you to understand, to build your understanding regarding the overall regulation about the import and export. Very important. 3 ministries are involved. Ministry of Finance, where we have RBI and CBIC, team. So CBIC, that is Central Board of Indirect Taxes and Custom, team. So RBI will generally provide regarding a movement of funds and documents. CBIC regulation of payment of duties. Then we have under RBI we have authorized dealers 1, 2 and 3. Okay? One is basically your the normal commercial bank and some cooperative bank. 2 is other cooperative bank, upgraded FFMCs and regional rural banks. And authorized dealers category 3 is DFIs, domestic financial institutions like Exim, SEDBI and all. Okay. Ministry of Commerce and Industry. So where we have DGFT for goods and SEPC, which is Software Technology Park of India. Sorry. हाँ बिल्कुल, सॉरी, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सॉरी, ठीक है. सो दैट जनरली फॉर सर्विसेज. STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया फॉर योर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड ऑल, ठीक है. सो विच जनरली कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. तो ये आपका 3 इस तरीके से, जो अगर आप डिटेल में इन चीजों को आपका देखते हैं, ठीक है. प्लीज ध्यान रखिएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द फैक्टर इन फैक्टरिंग, ठीक है. Factoring and forfeiting services. Which of the following export financing option provide 100% financing and generally used for medium term credit without recourse to the exporters? Okay, so now we have 2 services which is available to the exporters. One is your factoring services, another one is forfeiting. Now what is the difference between these two? Factoring, if you talk about the factoring, in case of factoring, it is based on an open account. Okay, so it is an open account based. So it is an open account based. Means इसका मतलब क्या हुआ? Open account का मतलब क्या हुआ? जैसे let's say there is an exporter, there is an export company XYZ Limited. Okay, they are exporters. Suppose that. So this XYZ will conduct all their foreign remittance or all their foreign export transactions with the help of a single bank. Okay, let's say that bank is SBI. So SBI will be factor. So SBI आपका क्या होगा इस केस में? आपका factor for
आपका XYZ Limited. So how they generally deal? Open account means, let's say this XYZ did sale to A worth rupees 50 crores. So they receive an LC from the applicant, ठीक है, जो भी आपका applicant था उससे उनको आपका LC मिला, ठीक है, और buyer जो था आपका उससे, ठीक है, so या उसका जो issuing bank था उसके द्वारा, ठीक है. So what this XYZ will do, they'll pass on this LC to their factor, वो they'll discount it. वो बोलेंगे कि सर जैसे इसका आपका 80 to 85% आप अभी हमें पेमेंट कर दो, इंस्टेंट पेमेंट कर दो, रिमेनिंग द accounting or that entire journal or the ledger will be handled by the factor. तो बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन अदर्स जो सारी एक्टिविटीज हैं दैट इज जनरली टेकन केयर बाय एसबीआई इन केस ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ XYZ लिमिटेड. सो इट इज एन ओपन अकाउंट बेस. जैसे फिर दूसरा ट्रेड उन्होंने किया विद बी, ठीक है, सो बी एंड द वैल्यू वाज सपोज दैट 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो इस 100 करोड़ का अगेन जो उनका एलसी है उसका सर्टेन अमाउंट्स दे लास्ट फॉर लेट्स से 80% दे टुक फ्रॉम एसबीआई. एसबीआई को मिलेगा जब आपका एक्चुअल डेट होगा एंड द एंटायर the ledger is generally managed by SBI on behalf of XYZ Limited. This is an open account basis. But in case of forfeiting, so it is basically it is transaction based. It is single transaction based. ठीक है. So आपका single transaction based. Let's say there is a ABC exporter. ठीक है. So they did one sale to X. ठीक है. इन्होंने आपका US में किसी के साथ कोई export आपका किया X के साथ and it is let's say worth rupees 50 crores. So in this case what will happen, this ABC let's say they approaches to a bank called PNB, पंजाब नेशनल बैंक के पास ये आपके गए फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है. उन्होंने बोला कि सर वी आर गोइंग टू रिसीव दिस 50 crore rupees आफ्टर 3 months बट वी नीड इमीडिएट कैश. सो व्हाट वी डू, यू जस्ट गिव अस 45 crore rupees and we generally transfer the ownership of this particular bill to you, ठीक है. तो in that case it is like 100% is like जो एक डिस्काउंट पे उन्होंने उसको सेल आउट किया and there is no after entering into this particular contract this contract will end, ठीक है. अगली बार आपका नेक्स्ट टाइम when they enter with some other party like party Y, the sale size was 100 crore rupees and they sell it to, let's say they enter with the SBI, State Bank of India, next time the another one. तो ये आपका जो रहेगा. तो in case of else factoring we generally discount 80 to 85% of bill. In this particular case we generally sell the entire value, ठीक है. And it is with sorry आपका in case of this particular case it is आपका with and without recourse, ठीक है. यहाँ पे आपका क्या होगा, सॉरी इट इज विद रिकोर्स, इट इज विदाउट रिकोर्स. यहाँ पे कोई गारंटी अदर्स उसकी रिक्वायरमेंट होती है. इट इज बैक बाय एलसी, ठीक है. यहाँ पे इसका अनिवार्य होगा क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट क्या है आपका, दैट इज विच इज द प्रॉमिस इज मेड बाय बैंक की वी विल पे द 100 अमाउंट, ठीक है. तो एलसी आपका एक डॉक्यूमेंट्स होगा जिसके बेसिस पे वो ये गारंटी आपका ले रहा होगा, ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन 100%. तो आपका आंसर क्या होगा इस केस में, फोरफिटिंग विल बी राइट आंसर for this particular one. So forfeiting involve the sale of export receivable at discount to financier who assume a political and commercial risk without recourse. It is without recourse, ठीक है. So this is a case of without recourse forfeiting and factoring is with and without recourse. Means वहां पे कुछ आपका गारंटी जो 75% अगर किया है तो 25% या 80% 20% इस तरीके से, ठीक है. It ensure 100% finance of the invoice amount, unlike factoring, which typically provides 75 to 80% of invoice value. Packing credit loan is for short-term pre-shipment financing and pre-shipment, post-shipment advances. These are the total other terms. ठीक है, pre-shipments या packing credit जो loan होता है that is generally valid for 90 days. ठीक है, तो 90 days before the आपका shipment जो यहाँ पे आपका रहता है, ठीक है. So beside the regular financing avenues from a bank, exporter also have access to other avenue. They are generally called factoring and forfeiting. So factoring, if you talk about the factoring, so factoring is defined as a continuing agreement between a financial institution, which is known as factor, as in our case it was SBI, and a business concern, which was exporter, which was XYZ Limited. Okay? Selling good or services to track customer to on an open account basis. What is an open account basis? का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर
एक्सपोर्टर के जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दे आर जनरली हैंडल्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर बैंक ओनली, ठीक है. Whereby the factor purchase the client book debt either with or without recourse, so it can be with or without recourse to the client, and in relation there to control the credit extended to the customers and administrator the sales ledger. तो उसके बाद का जो sales ledger या अदर सारी जो एक्टिविटीज हैं दैट इज जनरली गेट हैंडल्ड बाय द बैंक इटसेल्फ, ठीक है, और जो फैक्टर है उसके द्वारा, ठीक है. सो व्हाट आर द की एडवांटेजेस, प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन, ये आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है. इमीडिएट फाइनेंसिंग ऑफ 75 to 80%, no need for LC, it can be with or without recourse, but forfeiting is always with recourse, ठीक है. Credit check is credit check on importers or buyers. This is done by the factor. So these are the facilities which generally factor providing to the businesses or exporters. Sales ledger is maintained by the factor, and credit protection on all approved debt limits. Advisory services also. कि these are the other countries buyers जो और customers के, you can also approach them so you can increase your business, ठीक है. तो क्या क्या होते हैं आपका डेट प्रोटेक्शन, ठीक है, डेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट प्रोटेक्शन, फैक्टर फाइनेंसिंग, दीज आर द फैसिलिटीज व्हिच आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर टू द एक्सपोर्टर. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस. अच्छा, ओके, क्विकली गो थ्रू दिस, जस्ट अलाउ मी 1 minute. Done, guys. So these things we have already discussed in our concept classes. तो मैंने ये इसलिए रखे कि जिससे आप जल्दी इससे इनको आपका रिकॉल भी कर पाए, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Forfeiting, as we talk around this particular one also, ठीक है. So another product for financing of export receivables is forfeiting. It can define as a mechanism for financing by discounting of export receivables without recourse, ठीक है. So it is without recourse to the exporters or sellers for a medium term on a fixed rate basis for a full value of the contract or invoices, ठीक है. So these are the benefits which are generally associated with forfeiting if an exporter entered into a contract with any financier. Okay, so in case of that particular factoring, it is known as factor, and in this case it is the another party, bank or institution, they are generally known as financier. Okay, so take away political and commercial risk associated with the export receivables, 100% finance, freedom from the credit administration and follow up, cost saving on insurance beside related paperwork, fixed rate financing. Okay, let's say in our case the bill was 50 crore rupees and they discounted it at, suppose that 5%. So 5%, after paying 5%, remaining amount that financier will provide to the exporter in this particular situation. ठीक है. So what are the differences between factor and forfeiting? I have mentioned here. ऐसी चीजें, ऐसे स्लाइड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बिलीव मी, ठीक है. तो ये आपके रिवीजन में आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेंगे, ठीक है. सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है. आई विल हैव अ क्विक लुक, अदर्स में नहीं करेंगे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है. सो फैक्टरिंग इज अ शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, ठीक है, whereas forfeiting is a medium to long term. Factoring can be done with or without recourse. Forfeiting is done without recourse. It is with or without. It is without recourse because it is backed by LC. Factoring is applicable to both foreign and domestic transaction, and forfeiting is generally for international transaction. Factoring is applicable for ongoing open account sale and which is backed by LC or accepted by bill of exchange, whereas forfeiting is appropriate for one-time transaction that is backed by LC or approved bill of exchange. Factoring necessitate a continuing arrangement between factor and customer in which all sales are routed by the factor, but forfeiting does not necessitate the seller routing other business along with the forfeiter or the financier. Deal are closed transaction by transaction. Okay, I hope this is clear to all of you. Please do take care about this. Next one, which of the following is not a key difference between factoring and forfeiting? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, स्टेटमेंट बड़े बड़े, ठीक है. तो ध्यान से पढ़िए. एक आपका जो इनकरेक्ट है अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फैक्टरिंग एंड forfeiting, ठीक है. सो फैक्टरिंग इज
used for short-term transaction, true, while the forfeiting is usually medium to long. Factoring can be done with or without recourse. Forfeiting is without recourse, ठीक है, always without recourse, बिल्कुल सही है, ठीक है. Factoring is applicable only to international transaction, नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है. Factoring is generally for domestic as well as international, ठीक है, and forfeiting is आपका only for international. तो this statement is wrong. Factoring require a continuous arrangement with the factor while the forfeiting transaction specific, ठीक है, transaction specific, this is also true. तो incorrect आपका पूछा गया था, तो आपका correct answer क्या होगा? C will be our right answer in this particular case. Understood guys? ठीक है, तो factoring can be used for both domestic and international sale, whereas forfeiting is exclusively for international trade. Factoring is short term, remaining we have discussed earlier also, right? Next one, an importer opt for buyer's credit, ठीक है. So we have gone through buyer's credit and seller's credit, ठीक है. तो buyer's credit क्या होता है आपका बेसिकली, ठीक है. तो जैसे an importer, let's say importer who opted buyer's credit, ठीक है. जैसे let's say there is an importer from India, एक importer है आपका इंडिया से, मिस्टर ए, ठीक है. सो ही इज इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम यूएस फ्रॉम मिस्टर एक्स आपका, ठीक है. तो इसने क्या ऑप्ट किया है आपका इंपोर्टर क्रेडिट. इंपोर्टर क्रेडिट मींस ही इज टेकिंग लोन इन यूएस. इसने क्या किया है आपका, ये जो ए है इसने यूएस में आपका लोन लिया. हियर ही हैज टेकन लोन मींस इट इज इन डॉलर, ठीक है. इंपोर्टर क्रेडिट आपका इसने लिया है, ठीक है. बायर्स क्रेडिट आपका, ठीक है. इंस्टेड ऑफ सप्लायर क्रेडिट टू फाइनेंस कैपिटल गुड्स, ठीक है. तो यहां से कुछ सामान आपका मंगा रहा है, उसको इसके फाइनेंस करने के लिए. व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क दैट importer face in this arrangement? So what kind of risk he may face in this particular one? Fluctuation in this particular currency, ठीक है. जिस करेंसी में इसने लोन लिया हुआ है फॉरेन करेंसी के अंदर, तो अगर ये इसकी पोजीशन की, जैसे लेट्स से एट द टाइम ऑफ डील प्राइसेस वाज $1 इक्वल टू 83. अब कल के डेट में अगर ये $1 इक्वल टू 85 हो गया, सो नाउ दे हैव टू मेक पेमेंट्स एट हायर वैल्यू, ठीक है. सो दैट इज द वन. और जैसे इंटरेस्ट रेट वाज सपोज दैट 3% एट दैट टाइम, नाउ इट इज इंक्रीज टू 5%. सो दिस काइंड ऑफ रिस्क दिस इन्वेस्टर ए और सॉरी इंपोर्टर ए माइट फेस इन दिस केस, ठीक है. इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक बैंक फॉर फाइनेंसिंग, नो. Exposure to fluctuation in foreign interest rate, yes. Inability to avail extended payment, non-compliance with FEMA regulation, ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है. तो आपका B should be right answer for this particular one, ठीक है. So buyer's credit आपका is arranged from the foreign bank or financial institution, meaning the borrower is subject to LIBOR or other foreign interest rate. A rise in global interest rate can significantly increase the borrowing cost. Supplier credit, the alternative option, allow the importer to receive extended credit directly from the supplier. Supplier credit आपका, ठीक है, avoiding the borrowing risk and all. तो यहाँ पे supplier credit में generally क्या हो रहा है आपका, this on behalf of this A, X will take the loan, ठीक है, और वो उसको आपका प्रोवाइड करेगा कि आप खरीदने के लिए ये पैसा लो, आप खरीदो, बाद में आप पेमेंट करो. इस तरीके से जो लीग आपका होगा. विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर इन डिटेल, ठीक है. तो पहले सप्लायर क्रेडिट की बात कर लेते हैं. सो सप्लायर क्रेडिट इज डायरेक्टली एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लायर ऑफ गुड, ठीक है. जैसे दैट जैसे हमारे केस में क्या था, दिस एक्स ही इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मार्कर. ये जो मार्कर का मैन्युफैक्चरर था, इसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को सेल करना था इंडिया में, ठीक है. तो उसने आपका ए को पकड़ा, कंपनी ए को, उसने बोला कि लाइक दिस विल कॉस्ट यू, जैसे इनका जो सेल एग्रीमेंट था दैट इज लेट्स से आपका $10 million, ठीक है. $10 million का सेल एग्रीमेंट किया. उसने बोला टू बाय दिस 10 million दिस वी विल प्रोवाइड यू फाइनेंसिंग, ठीक है. हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे पैसा आपका, ठीक है. तो इसलिए दैट इज द लिंक, ठीक है. To the importer as in domestic market, in the international market also, ठीक है. It can be in US market, आप उस रूट से, या फिर आप इंडियन मार्केट में वो आपको लोन दिला रहे हैं, ठीक है. पेमेंट टर्म आर ईदर साइट और ऑन क्रेडिट. साइट मींस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, जैसे आपका बिल मिलेंगे, ठीक है, डिमांड जिसको हम बोलते हैं. आपका क्रेडिट विच इज ऑल्सो नोन एज ओसेंस आफ्टर द receiving of that particular goods, let's say 30 days, 45 days or 90 days. ये हमने बहुत पढ़ा है पिछले क्लास में, ठीक है. The period of credit normally depend on the necessity of the
exporter or seller of goods to increase sale, the demand of goods in the market, or this basically what this exporter is doing, they are generally creating demand for their own goods, ठीक है, by providing the क्रेडिट टू द बायर्स कि आप हमारे वहां से सामान लो काइंड ऑफ उधारी में और हम आपको पैसा देते हैं, उस पैसे को आप हमें पेमेंट करो, इस तरीके से रूट आपका कर रहे होते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ सप्लायर क्रेडिट इज रिनॉक फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट is 3 years from the import of capital goods. For non-capital goods, this period is up to 1 years or operating cycle, whereas wherever is less. The maximum amount of supplier credit per import transaction that can be like approved, that is 50 million US dollar. ठीक है, as per the FEMA regulations. ठीक है, buyer credit is credit arrangement by imported buyer from a bank or financial institution outside country. जैसे अभी हमने build किया था A who took loan in US to make the payment to B, ठीक है, to settle the payment of import. In short, it is a credit arrangement by a buyer to settle import payments irrespective of the period of credit, ठीक है. As such, the importer approached his bank and request for arrangement of payment to the exporters on immediate terms, ठीक है. So again, इसका भी 50 million 3 years 1 years. So these all guidelines are same, guys. For capital it is 3 years, non it is 1 years, and the per import transaction it is 50 million. The good thing is these all are aligned, ठीक है, जो आपका importer exporter है दोनों में सेम है. So you have to like आपको ज़्यादा challenges नहीं आएंगे याद करने में. अगला, what is the primary objective of export data processing and monitoring system? EDPMS, ठीक है. तो EDPMS हमने आपका डिस्कस किया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो मेनी टाइम एग्जामिनर दे जनरली आस्क क्वेश्चन, ठीक है. EDPMS फॉर इंपोर्ट डेटा, सॉरी एक्सपोर्ट डेटा, IDPMS फॉर इंपोर्ट डेटा, ठीक है. बोथ गेट इंट्रोड्यूस इन 2015 सॉरी 2014 बाय RBI. तो ये क्या है, आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑथराइज्ड डीलर्स दे जनरली बेसिकली इंसर्ट द डेटा, ठीक है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आपके हो रहे हैं उनके सारे डेटाज आपका यहाँ पे उनके द्वारा आपका रेगुलर बेसिस पर और डेली बेसिस पर आपके सबमिट किए जा रहे हैं, ठीक है. तो जिससे हमारे पास फॉरेक्स का भी क्या स्टेटस है वो भी पता चले ऑन रियल टाइम बेसिस, और इसके अलावा और भी चीजें, जैसे इफ देयर इज एन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हु मेक सम वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, तो उनको एस्केलेट करना, तो उसके बेसिस पे RBI विल पुट देम इनटू द कॉशन लिस्ट, ठीक है. तो कॉशन लिस्ट में आपका या डी कॉशन में ये सब चीजें यहीं से ड्रिवन होती हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू ऑटोमेट शिपिंग एंड लॉजिस्टिक एक्सपोर्टर्स, टू मॉनिटर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग पेमेंट इन द रियल टाइम, बिल्कुल सही. टू इंश्योर एक्सपोर्टर कंप्लाई विद एग्जाम लाइसेंस, नो. To facilitate real-time forex conversion of exporters, no, ठीक है. So EDPMS was introduced in 2014 to track export transactions and ensure that export proceed are realized within the realizable time. It helped caution listing exporters who fail to bring export earning on India as well, ठीक है. तो ऐसे जितने भी informations हैं they generally get generated through this particular portal itself, ठीक है. So EDPMS, I hope you remember this particular image. तो कुछ चीजें मैंने आपका सेम जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस में थी उसी अलाइन की हैं जिससे आप चीजों को बहुत जल्दी रिकॉल कर पाओ, ठीक है. तो 2014 was the time when RBI introduced this particular one. Same time आपका IDPMS also, import data processing system, ठीक है. So this is an online program for all Indian bank to record exporters transactions with them online. So RBI can increase the transparency of record of dollar payment flow between India and abroad, ठीक है. So RBI authorized dealers bank can access the updated list of caution list exporters through EDPMS on daily basis. तो आपका कॉशन लिस्ट में क्या होता है, उन एक्सपोर्टर्स को डालते हैं जिनका कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, ठीक है, जो वायलेशंस में है एंड अदर्स. तो यहाँ पे कब कौन कितने एक्सपोर्टर्स कॉशन में है, कहीं ऐसे हम किसी एक्सपोर्टर को तो फाइनेंस नहीं कर रहे हैं ऑल, जैसे देयर वाज वन प्लेटफॉर्म आई जस्ट मिस दैट नेम, ठीक है. तो ये ऐसे जो चीजें हैं ना वैसे इंपोर्ट डेटा के लिए आपका रहेगा, ठीक है. कॉशन और डी कॉशन का काम, जैसे ऑथराइज्ड डीलर के साथ खराब एक्सपीरियंस हुआ था, देन
उसने अपना इंप्रूवमेंट्स किया तो उसको डी कॉशन के लिए ऑथराइज डीलर के द्वारा आपका सजेस्ट किया जाएगा, तो फिर आरबीआई उसी तरीके से एक्शन लेगा, ठीक है। सो आरबीआई विल कॉशन और डी कॉशन दी exporters based on the recommendation of authorized dealer bank. Authorized dealer bank may forward its finding to the concerned regional office of RBI, recommending inclusion of the name of the exporter in the caution list or even for the decaution. ठीक है. So the guidelines require bank to record advance remittances received for the export in ADPMS. Bank will also be required to record all outstanding advances received. ठीक है, कोई एडवांस आपका एडवांस रिसीव है या कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है, एवरी ईच एंड एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन, वो आपका फुल पेमेंट हो, आपका एडवांस हो या पिछला कोई आपका बचा हुआ हो, दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस पोर्टल, ठीक है। सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इट इज एक्सपोर्ट और आपका इंपोर्ट दोनों ही सेम वे में आपका काम करते हैं, ठीक है। A company has a gold card issued under the RBI gold card scheme for exporter. Which of the following benefit is not guaranteed under the scheme? अब गोल्ड कार्ड स्कीम सब बैंकों का है, इंडिया में आपके बैंक का भी है, ठीक है। So it is generally for the value exporters, ठीक है, ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनका क्रेडिट वर्दिनेस हाई रहा है, जिनका एक्सपीरियंसेस काफी अच्छे हैं, ठीक है। So to help them out, what RBI did, they come up with gold card scheme, ठीक है, जिसकी कुछ जनरल गाइडलाइंस आरबीआई ने फ्रेम करी, उसके अलावा कुछ एडिशनल आपका बैंक के द्वारा, जैसे हम अपने गोल्ड कार्ड स्कीम के साथ वी प्रोवाइड सम एडिशनल सर्विसेज लाइक विदड्रॉ, कैश विदड्रॉ, सम आपका एटीएम यूजेस और आपका ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ऐसे जो भी एडिशनल फैसिलिटीज आपके होते हैं, ठीक है। सो नाउ गोल्ड कार्ड स्कीम इज जनरली फॉर वैल्यू कस्टमर दोज हु हैव हाई क्रेडिट वर्दिनेस। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, ठीक है, दे हैव सम सैंक्शन लिमिट एंड in that particular sanction limit, if exporter use that particular one, so the interest rate will be comparatively low compared to other market things, and even they have one drawdown limit also, ठीक है। Let's say there is a customer whose gold card scheme limit is supposed at 1 crore, so they can withdraw 20% above, ठीक है, उसका जो आपका 1 करोड़ 20 लाख तक का भी अगर रिक्वायरमेंट है तो दैट फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल विद दैट वन, ठीक है। तो जो 1 करोड़ का लिमिट है, देन एक स्टैंड बाय लिमिट भी आपका 20% का, तो ऐसी जो फैसिलिटीज हो यहाँ पे, ठीक है। सो फास्टर प्रोसेसिंग फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट एप्लीकेशन, यस, ऑटोमेटिक सैंक्शन ऑफ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, वेवर ऑफ कोलेटरल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट, सारी सही है, ठीक है। एक्सेस टू स्टैंड बाय क्रेडिट लिमिट एटलीस्ट, हाँ अब ये गलत है ना, कितना बोला था मैंने आपको, 20% ऑफ द असेस्ड लिमिट। 1 करोड़ था पहले, तो 1 करोड़ 20 लाख आपका हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द वन। चलो इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा आपका, ठीक है। So based on the indication made by the government, Ministry of Commerce and Industry, in the Foreign Trade Policy 2003-4, to launch a gold card scheme for credit-worthy exporters with good track record for easy availability of the export credit on best term, RBI has drawn up the gold card scheme, ठीक है। तो जिसमें आपका फीचर्स, these features आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, तो प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। क्रेडिट वर्दी, सो विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड जिसको मिलेगा। गोल्ड कार्ड अंडर द स्कीम मे बी इशूड बाय एलिजिबल एक्सपोर्टर्स इशूइंग दोज स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स हु satisfy the conditions. The scheme will not be applicable for exporters blacklisted by ECGC and or having overdue bill in excess of 10% of their प्रीवियस ईयर टर्नओवर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो एग्जाम वाला पॉइंट है, ठीक है। या तो ईसीजीसी ने अगर उसको ब्लैकलिस्ट किया है तो उसको भी नहीं मिलेगा, या फिर उनका जो ओवरड्यू अमाउंट है, लेट्स से योर अमाउंट वाज आपका 1 करोड़, सो उसका 10% से ज्यादा अगर ओवरड्यू है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो वो एक्सपोर्टर भी इसके फायदे नहीं ले सकते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गोल्ड कार्ड होल्डर एक्सपोर्टर्स डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रैक रिकॉर्ड्स एंड क्रेडिट वर्दिनेस granted better term of credit including rate of interest. Banker would clearly specify the benefit they would be offering to the gold card holders, ठीक है। The sanction and renewal of the limit under the scheme will be based on a simplified procedure to be decided by the bank itself, taking into account anticipated export turnover and track records of the exporter. The bank may determine need-based finance विद लिबरल अप्रोच। इन प्रिंसिपल लिमिट, ठीक है, जैसे आपका इनिशियल लिमिट जो होती है, इनिशियली अप्रूव लिमिट, इन प्रिंसिपल आपका, तो अगर
कस्टमर इज मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि जो भी उसकी रेपुटेशन या क्रेडिट वर्थिनेस है, सो वी कैन प्रोवाइड द एडिशनल वन, ठीक है। इन प्रिंसिपल लिमिट विद द सैंक्शन फॉर द पीरियड ऑफ इनिशियल कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, 3 years with a provision for automatic renewal subject to fulfillment of term and conditions और स्टैंड बाय लिमिट ऑफ 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो रहता है, तो दिस इज द मैक्स आपका, दिस इज स्टैंड बाय लिमिट ऑफ नॉट लेस देन 20%, ठीक है। 20% तक का हम उनको क्या दे रहे हैं, आपका आरबीआई के हिसाब से स्टैंड बाय लिमिट दे ही दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द वन, ठीक है। So, gold card holders would be given preference in matter of granting packaging credit, waiver of collateral, and the facility further value additions. जैसे आपके बैंक वाइज जो नए नए ऑफर होते हैं to attract the exporters, we generally provide these kind of facilities also. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिला, तो सेम चीजें आपका जो यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following best describe how an exporter using factoring minimize the foreign exchange risk, ठीक है। So how an exporter is using factoring services to minimize the foreign exchange risk, ठीक है। तो क्या करेगा वो आपका, ऑब्वियसली किसी फैक्टर के साथ या किसी जो बैंक फैक्टर इज इक्वल टू इंस्टीट्यूशन, उसके साथ एग्रीमेंट में जाके आपका he'll eliminate the country risk or counterparty risk, ठीक है। By securing forward contract on their receivables, by shifting currency fluctuations risk टू फैक्टरिंग इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही, ठीक है। बाय ट्रांजेक्शन ओनली नो दिस, तो आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। सो इन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग द फैक्टरिंग कंपनी अज्यूम द क्रेडिट एंड फॉरेक्स रिस्क, ठीक है, मीनिंग द एक्सपोर्टर रिसीव अ फिक्स पेमेंट अपफ्रंट without worrying about the currency fluctuation. That is the headache of the factor itself, ठीक है, after entering in that contract. Which of the following exports is not exempted from the रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, EDF, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो EDF आपका एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट इज नॉट एग्जेम्प्टेड, ठीक है, यहाँ पे नॉट एग्जेम्प्टेड पूछा गया, ठीक है, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ EDF अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन। अब ना देखो, हमने 2 डॉक्यूमेंट पढ़े थे, वन वाज EDF एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म इन केस ऑफ गुड्स में हम लोग, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर वी जनरली यूज सॉफ्टेक्स, ठीक है। देयर आर 2 फॉर्म, ठीक है। सो क्या होगा, गुड्स मतलब ये किसमें होता है जनरली आपका नॉट एग्जेम्प्टेड, एग्रीकल्चर और अदर्स आएंगे, ठीक है। सो गुड्स सेंड आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग सब्जेक्ट टू री इम्पोर्ट, इट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो हमने जैसे मार्कर बनाया, हमने इसको टेस्ट करने के लिए रशिया भेजा और हमें ये फिर वापस आएगा, ठीक है, दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। उसमें आपका EDF की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर्सनल, इट इज एग्जेम्प्टेड बेसिकली, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रेवलर्स वेदर अकम्पनीड और अनअकम्पनीड, तो अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो उसमें भी नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड अंडर और लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सो दीज आर लाइक इस केस में, मतलब दिस इज द केस जहां पे हमें EDF की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। दिस इज द वन, ठीक है। नॉट क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट इज नॉट एग्जेम्प्टेड, ठीक है। सो दिस इज सॉरी, इन दिस केस विल बी रिक्वायरिंग EDF, ठीक है। इसमें हमें इनमें EDF की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। शिप स्टोर्स एंड ट्रांसशिपमेंट्स कार्गोज, शिप स्टोर एंड ट्रांसशिपमेंट कार्गोज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना, लेट्स से दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। जैसे लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग सम मिशन टू हेल्प आउट पीपल आउटसाइड कंट्री, जैसे होता है ना, जैसे मालदीव के अंदर प्रॉब्लम हुआ तो हमने अपने यहां से राहत सामग्री भेजी, सो फॉर दैट केस ऑल्सो इट इज आपका, उसके लिए भी आपको EDF की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या RBI के द्वारा आपका नोटिस दिया गया इस चीज के लिए नहीं होगा तो वहां पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे लेट्स से वी इंपोर्टेड राफेल फ्रॉम रशिया, राफेल हम रशिया से लेके आए, ठीक है। अब राफेल का एक पार्ट जो रिपेयर होने के लिए रशिया जा रहा है फिर वापस आएगा, वो उसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। या हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं आउटसाइड कंट्री, तो उसमें भी आपको EDF की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दैट इज द वन, बट इन दिस केस वी विल बी रिक्वायरिंग और एक्सपोर्टर विल बी रिक्वायरिंग टू फिल द EDF, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड अंडर LC, तो दे आर रिक्वायर्ड दिस वन, ठीक है। सो एग्जेम्प्टेड एक्सपोर्ट अंडर अदर्स सैंपल है, जैसे पर्सनल इफेक्ट है, शिप स्टोर है, गिफ्ट है, एंड री इम्पोर्टेबल गिफ्ट अप टू 5 लाख, हाँ, ठीक है।
री इम्पोर्टेबल गुड्स आपके हैं, ठीक है। सो ये आपका, इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अंडर LC require an EDF declaration as they do not fall under that particular category, ठीक है। तो मैं आपको कैटेगरी दिखा देता हूं, ठीक है। सो वी हैव EDF एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। सो आपको ऐसे इस फॉर्म की जरूरत नहीं है, बट ये किस तरीके से होता है, ये आपका जैसे कस्टम एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, कस्टम सिक्योरिटी नंबर्स, एक्सपोर्टर नेम एंड नंबर्स, कंसाइनी नेम एंड एड्रेस, नेम ऑफ इंडियन बैंक ऑथराइज्ड डीलर्स, जनरल कॉमोडिटी डिस्क्रिप्शंस, ये आपका जैसे पर्पस कोड या अदर्स, ये सारी चीजें आपको जो इसमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ऑफ फेमा, ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया वेदर इन फिजिकल और एनी अदर फॉर्म, मतलब जो सॉफ्टवेयर से हैं वो required to declare in the prescribed form to the effective that full value of export will be realized within the prescribed period and in the prescribed manners। तो ये आपका, अब यहाँ पे कुछ exemptions हैं जिनके ऊपर हमने ये क्वेश्चन आपका किया, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, वन इज EDF which is export declaration form which is used for export other than software, ठीक है। और आपका सॉफ्टेक्स विच इज आपका एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, प्लीज डू रिमेंबर सॉफ्टेक्स इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आपका, अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर एवरीथिंग दैट जनरली कम्स अंडर द EDF, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI सिस्टम एट अ सर्टेन कस्टम ऑफिसेस, आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी में हो गया, ठीक है, वेयर शिपिंग बिल आर प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली, द GR फॉर्म हैज सिंस been replaced by the declaration in EDF electronic declaration form, ठीक है। The EDF from which the submitted in duplicate to the concerned commissioner of the custom। तो जो एक्सपोर्ट और अदर्स हो रहा है ना, डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। आफ्टर वेरीफाइंग एंड ऑथेंटिकेटिंग द डिक्लेरेशन फ्रॉम EDF, the commissioner of custom will hand over to the exporter one copy of the shipping बिल मार्क एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी है, ठीक है। तो जिसमें एग्जाम्पशंस में क्या क्या है, जहां से हमारा क्वेश्चन था, EDF अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बिलीव मी, एवरी टाइम एग्जामिनर दे जनरली आस्क क्वेश्चन अराउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो क्या क्या एग्जेम्प्टेड है आपका, फॉलोइंग एक्सपोर्ट और शिपमेंट्स आउट ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म of the cause indicated regulation 4 of foreign exchange management, export of goods and services regulation dated 12 of January 2016। पहला, trade sample of goods and publicity material supplied free of payments, जैसे हमने मार्कर मैन्युफैक्चर किया एंड वी सेल इट, हमने इनको सेंड किया आपका कहाँ पे, US कि ये हमारे सैंपल्स हैं, सैंपलिंग के लिए, ठीक है। सैंपल है तो फ्री में जाएगा, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, जैसे हम लोग खुद से जाते हैं आपका, ठीक है। शिप, स्टोर और ट्रांसशिपमेंट कार्गो एंड गुड्स सप्लाइड अंडर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सच ऑफिसर्स एज मे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ और द मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्सेस अथॉरिटीज इन इंडिया। मैंने आपको बोला ना वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आधा है, अधूरा था जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट था। दिस इज द complete statement, all right। By way of gift of goods accompanied by a declaration by the exporter that they are not more than 5 lakh, ये भी ध्यान रखिएगा, गिफ्ट भी हो सकता है बट अप टू 5 lakh। एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन एंड स्पेयर पार्ट फॉर ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग अब्रॉड सब्जेक्ट टू देयर री इम्पोर्ट इनटू इंडिया, जैसे हमने रफेल का एग्जांपल लिया था। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड एक्सपोर्टेड, जैसे हमने 1 लाख मार्कर US भेजे, उसमें से सपोज दैट 10,000 वाज डिफेक्टिव, अब उन 10,000 का रिप्लेसमेंट हम भेज रहे हैं, ठीक है, विल नॉट गेट एनी पेमेंट फॉर दैट, तो ये भी आपका इस्तेमाल आएगा, ठीक है। गुड्स सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग सब्जेक्ट और टू री इम्पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, ये भी हमारा समझ में आता है। एक्सपोर्ट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट सब्जेक्ट टू दी टर्म इन कंडीशन, ठीक है। कई बार RBI, जैसे मैंने आपको बताया ना वो राहत सामग्री या अदर्स, तो RBI के द्वारा वहां पे आपका क्लेरिफिकेशन उसके ऊपर दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर EIC एग्जाम्पशन, गुड्स सेंट एज गिफ्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन ओनली इफ देयर टोटल वैल्यू डज नॉट एक्सीड टू 5 लाख रुपीज, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था,
ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपका बेसिकली दे विल नॉट गिव यू ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन, आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी अंडर द EIC एक्सपोर्ट रेगुलेशन, कौन सा एग्जेम्प्टेड है, अब आ जाएगा। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टेड अंडर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गुड सप्लाइड अंडर ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मशीनरी दिस, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अभी जस्ट डिस्कस किया है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पैकिंग क्रेडिट लोन अंडर द प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब हम आते हैं किस पे, आपका फाइनेंस क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स। तो दो फैसिलिटीज होती है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट, एंड दिस पैकिंग क्रेडिट दैट जनरली कम्स अंडर द प्री शिपमेंट वेयर द लोन टर्म इज 90 days बिफोर द शिपमेंट, ठीक है। तो शिपमेंट का डेट है और उससे उनके बीच में 90 days। इट इज यूजुअली फॉर लाइक द पैकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर और रॉ मटेरियल और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड ऑल, ठीक है, जिसके लिए दिया जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन नहीं, और वर्किंग कैपिटल लोन टू कवर कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड शिपिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्टर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है ना सबको दोस्तों, हाँ है ना, प्लीज मेंशन करते जाइए कमेंट्स में, ठीक है। और थोड़ा बहुत सेशन को लाइक भी कर दिया करें कभी कभी, ठीक है। और जो आपके साथी बैंकर्स है ना, उनके साथ भी शेयर करें, बहुत मेहनत करता हूँ मैं गाइस इस कंटेंट के लिए। और अभी ऐसा ही नहीं, सिर्फ इसके लिए AVM के ऊपर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। AVM का इतना सॉलिड कंटेंट आपको देंगे, फ्रेश आपका बना रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त मॉक टेस्ट आपको लेवल अप होते हुए मिलेंगे, ठीक है। 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर दिए आपके एग्जाम से पहले, 3 या 4 मॉक टेस्ट और मॉड्यूल वाइज जो MCQs हैं वो भी हम लोग आपका इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा ना हो कि आप पढ़ो और मतलब एग्जाम में आप ना उनको कर पाए, तो उससे पहले हम इसलिए पूरा एकदम सीक्वेंस की हर तरीके से आपको रेडी करेंगे, टफ से टफ बनाए तो भी, और 100% कंटेंट को अलाइन करेंगे आपका मैकमिलन के साथ, बिकॉज 90% क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट बुक इटसेल्फ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका चलेगा। तो आपसे बस यही विनती है, थोड़ा अपने दोस्तों को भी बता दिया करें, ठीक है। तो प्री क्रेडिट एंड पोस्ट, प्री क्रेडिट में क्या आता है आपका, 2 तरीके के लोन होते हैं, ठीक है। तो पैकिंग लोन दैट जनरली कम्स अंडर दी आपका प्री शिपमेंट, जिसमें आपका पैकिंग क्रेडिट लोन, ठीक है, जो नॉर्मल हमने बात किया, और एक होता है एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल्स, ठीक है, जैसे होता है ना ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड ऑल, तो उनके अगेंस्ट में भी आपका ये मिलता है, ठीक है। तो ये हमने आपका डिस्कस किया था, जैसे पैकिंग क्रेडिट और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट is essentially a working capital advance allow for a specific purpose of producing, processing, manufacturing of goods mean for export. It could cover all prior to the shipments, ठीक है, जैसे फिनिश गुड से पहले जो होता है पैकिंग है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्जेस एंड ऑल, दे कम्स अंडर दिस। तो द बोरोवर इज बैंक ऑफ कस्टमर, क्या इसकी गाइडलाइंस है, ठीक है। दे शुड हैव IEC, ठीक है, दैट इज इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, and their name should not be part of the caution list of RBI. They should not be under the specific approval list of ECGC, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो इसमें होती है, ठीक है। They have been a capacity to execute the order also, and all KYC guidelines should be compliant, ठीक है, KYC due diligence. Which of the following is key risk for a bank providing post shipment finance to exporters? Post shipment finance to exporter, so there is a probability of default simply, ठीक है। Non availability of raw material for production, increase interest rate in domestic market, non payment or delayed payment आपका foreign buyers, तो C will be correct answer, सिंपल सा डिफॉल्ट रिस्क आपका क्रेडिट रिस्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द RBI गोल्ड कार्ड स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स, सो लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सपोर्ट रहता है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल आपका रहता है, ठीक है, प्रायोरिटी प्रोसेस टू ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एप्लीकेशंस, वेवर ऑफ कोलेटरल रिक्वायरमेंट, नहीं सारे ही हैं, अब दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है। लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन दिस, ये तो 100% सही है। ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट, अच्छा आई गेस दिस इज आपका 3 साल था ना, 3 years। प्रायोरिटी प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट एप्लीकेशन, वेवर ऑफ कोलेटरल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द, हाँ ये ना दिस इज द ईयर इज रॉन्ग आई गेस, मेरे को जितना याद आ रहा है, देखो इतना छोटा सा था, जल्दीबाजी में हम लोग इसे गलत कर देते, तो बी आपका आई गेस इट वाज 3 years, यस हाँ, तो ये कितना था आपका 3 साल, ठीक है, नॉट आपका 5 years, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट था, अभी हमने पढ़ा है, समझा है बहुत, आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। हाउ डज फैक्टरिंग डिफर फ्रॉम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस
एज एन एक्सपोर्टर फाइनेंसिंग मेथड। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, पोस्ट शिपमेंट क्या होता है, जैसे आपका जो बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है उसको आपका जनरली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिस्काउंट कर रहे होते हैं। फैक्टरिंग में इट इज एन ओपन अकाउंट बेस्ड, ठीक है, तो जहां पे भी हम लोग डिस्काउंट ही कर रहे होते हैं बिल को, बट नॉट द फुल अमाउंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाता है। फैक्टरिंग प्रोवाइड एडवांस पेमेंट व्हाइल पोस्ट शिपमेंट्स फाइनेंस does not, ठीक है। Factoring involves selling receivables while post shipment finance loan against receivables, बिल्कुल सही, ठीक है। Factoring is only available for domestic trade, नहीं, तो आपका देखो बी बिल्कुल सही है। फैक्टरिंग इन्वॉल्व सेलिंग रिसीवेबल्स, ठीक है, फैक्टरिंग में हमने ये चीज किया था। पोस्ट शिपमेंट एडवांस जो रिसीवेबल्स हैं उनके अगेंस्ट में लोन हम लोग ले रहे हैं, मतलब क्या होगा डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो पैसा होगा वो किसके पास जाएगा, इन केस ऑफ फैक्टरिंग जैसे वो अगर एंट्री कर जाता तो पैसा डायरेक्टली जो फैक्टर है उसके पास जाएगा, ठीक है। फैक्टर अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड विद दैट जो रिसीवेबल जो बिल हमारा था उसके केस में। यहाँ पे जो रिसीवेबल है उसको हम एज अ कोलेटरल यूज करें एंड वी आर टेकिंग लोन, हमारे पास पैसा आएगा, मतलब बीइंग एन एक्सपोर्टर दैट अमाउंट विल क्रेडिटेड इन माय अकाउंट, देन वी विल मेक पेमेंट टू द बैंक, ठीक है। ये जो छोटा सा डिफरेंस आपका, ठीक है। B. Factoring allow exporter to sell their account receivable to a financial institution factor, converting invoices into immediate cash, ठीक है। Post shipment finance, on another hand, is a loan provided against export receivables, which must be repaid upon the collection. तो पोस्ट सैंक्शन में हमारे पास जैसे पहले तो कंडीशन क्या है कि उसमें कोई प्री क्रेडिट फाइनेंस नहीं होना चाहिए, नो पीसीएल, ठीक है, प्री क्रेडिट आपका प्री क्रेडिट लोन हैज बीन अवेल बाय हिम अगेंस्ट द सेम एलसी एंड ऑल, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, बैंक शुड कॉल क्रेडिट रिपोर्ट और स्टेटस, द एक्सपोर्टर शुड सबमिट स्टॉक स्टेटमेंट फॉर गुड्स ऑन विच पीसीएल हैज बीन अलाउड, ठीक है। If the exporter are covered under the letter of credit, bank should need to be satisfied about the standing of the credit opening bank, ठीक है। जैसे एक एलसी आपका है उसके, तो जिसने एलसी इशू किया है उसकी क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है पूरा बैंक ही डिफॉल्ट कर जाए अगर बड़ा अमाउंट है। बैंक मे ऑल्सो बुक लुक इनटू द रेगुलेशन द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बायर कंट्री, ठीक है। अगर उन्होंने कल के डेट में जैसे इंडिया एंड मालदीव वाला केस हुआ था तो दैट टाइम सम ट्रेड गॉट डिस्टर्ब, ठीक है, कि वहां के जो बैंक जिनको पेमेंट करनी थी गवर्नमेंट वाइज रिस्ट्रिक्शंस लगे तो आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज एसेंशियली एज एडवांस अगेंस्ट द रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एडवांस अगेंस्ट बिल्स एंड ऑन कलेक्शन, एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट, एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेस और आपका ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है, जो गवर्नमेंट से हमें मिलेंगे। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाय आपका DGFT, ठीक है, एंड फर्दर विच फंक्शन अंडर किसके अंदर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो DGFT, हाँ DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, हमने ये डिस्कस किया था आपका, ठीक है, मोस्टली। अ स्टार्टअप कैन रेज ECB मैक्सिमम अप टू, actually this question is based on your next unit, ECB, external commercial borrowing, ठीक है। तो बेसिकली ECB is external commercial borrowing. It is a route through which Indian companies they are raising funds from outside India. Simple terms में, ठीक है, जैसे एक Indian company like Reliance, they borrowed money from US market by issuing bond or taking loan, ठीक है। In general, financial year limit is 750 million US dollar, ठीक है। एक कंपनी आपका नॉर्मल केस में दे कैन रेज अप टू 750 मिलियन US डॉलर, बट फॉर स्टार्टअप जो कंपनीज जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्टअप का टैग दिया गया है दे कैन रेज फंड्स अप टू 3 मिलियन US डॉलर ओनली, ठीक है। तो 3 मिलियन US डॉलर आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन जनरल इट इज 750, अगले उसमें पढ़ेंगे इसको। अच्छा ये क्वेश्चन में अगले इसका ही है, ठीक है। हाउ ऑफन कैन कॉर्पोरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इशू ECB विद 1 ईयर मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होते हैं, ठीक है, वेयर दे आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर फंड्स एंड देन दे हैव सम फॉरेन बायर्स इन ऑल, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, और ओनर्स। व्हेन ECB यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, व्हेन ECB इज रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, बिल्कुल, एंड यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, बी विल बी राइट आंसर फॉर श्योर, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आपका मिनिमम ये जो मेच्योरिटी एवरेज मेच्योरिटी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसके बेसिस पे
वी विल प्रैक्टिस 7-8 क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में। यही स्टेटमेंट मिलेंगे, एक स्टेटमेंट गलत होगा तो वही आपको फाइंड आउट करना होगा, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर वाला यूनिट, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास है अंडर द EBR एक्सपोर्ट बिल्ड डिस्काउंटिंग प्लान, प्री शिपमेंट क्रेडिट में लास्ट फॉर कितने समय बताया था मैंने आपको, 90 डेज के लिए, ठीक है, इट विल लास्ट फॉर 90 डेज, ठीक है। तो जो प्री आपका जो पैकिंग क्रेडिट लोन होता है दैट इज यूजुअली फॉर 90 डेज, ठीक है। सो प्री शिपमेंट क्रेडिट पीरियड परमिटेड बाय EBR system is usually for how many days, 90 days from the date of shipment, ठीक है। Each of the following is difference between factoring and forfeiting except, तो फैक्टरिंग और फोरफिटिंग के बीच में डिफरेंसेस लिखे हैं एक को छोड़ के, ठीक है। सो फैक्टरिंग इज शॉर्ट टर्म and this is medium to long term true. Factoring can be done with or without recourse to. Forfeiting always without recourse. Factoring only applicable. Okay, we solved this question, ठीक है। Foreign transaction तो C आपका, we have practiced this question earlier also guys। चलो आगे बढ़ते हैं। To pay a one-time transaction is backed by LC, an exporter is seeking funding option, ठीक है। तो जैसे आपका एक बिल है, वो वन टाइम में 100% उसको आपका सेल आउट करना चाहता है, सो इट इज द केस ऑफ फोरफिटिंग, ठीक है। तो क्या होगा हमारा केस आपका, फोरफिटिंग, ठीक है। तो उसने विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंसिंग पॉसिबिलिटीज फिट टू दिस एक्सपोर्टर, so forfeiting is the best fit in this particular case, because in case of factoring we generally discount for 75 to 80% of that bill. Next one, what is the eligibility to open diamond dollar account? हाँ, this is again very important one, ठीक है। There was one question this year also, ठीक है, ये बहुत important है। DDA is generally for जो diamond exporters आपके होते हैं, ठीक है। अब देखो diamond exporters का जो business है ना, if you understand that business, what they generally do, they generally import raw diamond and they generally convert it in the jewelry form, then they export। क्या हो रहा है, पहले वो रॉ आपका जो कच्चा डायमंड है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसकी आपका ज्वेलरी बना रहे हैं, देन उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके ट्रांजेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। टू फैसिलिटेट दीज डायमंड ज्वेलर्स और businesses, we come up with one account that is called diamond dollar accounts. It is usually for value customers, ठीक है। अगेन जो ऐसे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हैं उनके लिए आपका, ठीक है। जैसे उनका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 3 इयर्स से वो आपका उस बिजनेस में होने चाहिए, ऐसे आपका जो गाइडलाइंस, ठीक है। 2 ईयर से बिजनेस में होने चाहिए, 3 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। सो एक्सपोर्टर इंपोर्टर डीलिंग इन रॉ एंड पॉलिश डायमंड, बिल्कुल। एक्सपोर्टर इंपोर्टर shall have a track record at least 2 years in import export of diamond, बिल्कुल सही। एवरेज एनुअल टर्नओवर इज 3 करोड़, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। एक बार पढ़िए। सो डायमंड डॉलर अकाउंट्स, एक्सपोर्टर इंपोर्टर डीलिंग इन रॉ एंड पॉलिश डायमंड्स और डायमंड स्टडड ज्वेलरी हैविंग अ ट्रैक रिकॉर्ड एट लीस्ट 2 years, दिस वाज द क्वेश्चन गाइस दिस ईयर, ठीक है। इन 2 पॉइंट के अराउंड आपका क्वेश्चन था। एन एवरेज एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 3 करोड़, can create a diamond dollar accounts with authorized dealers to conduct foreign exchange transaction, ठीक है। An exporter can keep up to 5 diamond dollar accounts, ठीक है। कितने आप डायमंड डॉलर, एक आपका रख सकता है, 5 आपका, ठीक है, with authorized dealers. Which of the following advantages of exporter gold card scheme? Gold card scheme हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। So a standby limit at least 20%, बिल्कुल सही, ठीक है। बैंक में कंसिडर वेवर ऑफ कोलेटरल, बिल्कुल सही। the applicable interest under the gold card scheme will not be higher than the standard rate, again true. The issuing bank may decide to provide customer with some additional facilities like this, तो all are correct, सारे ही स्टेटमेंट क्या है आपके ये आपका गोल्ड कार्ड स्कीम के संबंध में करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, what is the maximum period that a borrower can avail reporting delay by paying late fee, late submission fee? तो ये कितना हो सकता है, it can be any time, like 3 साल से भी ज्यादा हो सकता है अगर आप लेट फी पे करते जा रहे हो, ठीक है। तो सर आरबीआई बोलता है आप पैसा देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इट कैन बी बियॉन्ड 3 years as well, ठीक है। सो लीगली एक्सक्यूज, अगर इफ दे हैव लीगली एक्सक्यूज no reporting delay by paying late submission fee. So reporting delays can occur up to 30 days after submission deadlines and sometime even longer than 3 years as well. What is the minimum average maturity period external commercial borrowing are used for working capital or a general purpose team? What is the
minimum average maturity period for external commercial borrowing are used for working capital and general business period, so it will be 10 ईयर. ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, ये आपका एक्चुअली मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर आ गए हैं. ठीक है, ईसीबी आपका कितने समय तक पार कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी, जैसे एज आई गिव यू एन एग्जांपल ना, रिलायंस दे जनरली बोरोड 10 million US dollar from let's say US market, so they can park that money with authorized dealer bank and they can park it for how long, 12 months. ठीक है, टर्म डिपॉजिट विद आपका authorized dealer credit bank with 12 months. ठीक है, so I'll quickly skip these question now. ECB, ये क्वेश्चन हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गाइस. ठीक है, चलो हाँ, so this is it. All right, so this is it. These remaining question, last few question, 3-4 question, which belongs to ECB, and we will discuss in ECB itself, right? So this is all about your facilities for exporters and importers in India. ठीक है, I hope you enjoy this particular session और सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे. ठीक है, and if you have any doubt, please do mention into the comment section, or else you can connect me over there. Okay, this is my Telegram group. Okay, so you can connect me. The link is also given in the description box. Okay, now the next session will be based on case study. थोड़ा सा इस वीक में आपका लैग हुआ है अपलोड में. ठीक है, इवन सम कैंडिडेट दे ऑल्सो हाईलाइटेड दैट वन. फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर कि देयर विल बी नो डिलेज इन ऑल. ठीक है, थोड़ा सा अभी बैंक के इंटरव्यूज चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बिजी थे, नो प्रॉब्लम्स. ठीक है, बट अभी आपका ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी. यू विल गेट कंटेंट ऑन राइट टाइम. ठीक है, आई होप यू गाइस डन विद योर concept part, because like I really appreciate that particular comments. They clearly said कि sir we have done with the concept things, now we want unit wise MCQs and case studies. I really appreciate, I salute that. ठीक है, तो आप लोग मतलब बिल्कुल जितना मेहनत से पढ़ सकते हैं ऐसी चीज़ें हमें मोटिवेट करते हैं. विल डू, उससे ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे आपका. ठीक है, विल नॉट टेक एनी चांस. हर चीज़, हर एक सब टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे. विल डू रिविजन लाइव सेशंस ऑल्सो ड्यूरिंग योर एग्जाम मंथ. ठीक है, अभी करने का कोई पॉइंट नहीं है. आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बिजी होते हैं. अभी मैं चाहता हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चीज़ों को पढ़ते रहिए. ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन में और ड्यूरिंग द एग्जाम मंथ्स विल डेफिनेटली हैव लाइव सेशन इन ऑल, तो जहाँ पे आपके साथ इंटरेक्शन भी होगा, आपके डाउट्स को भी हम लोग लेंगे. ठीक है, टिल द टाइम इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन सेंड मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम. सो जब भी हम लोग ऐसे रिविजन सेशन करेंगे आई विल इंक्लूड योर क्वेरीज एज वेल, राइट? So this is it from my side, guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.